So, hi everybody, welcome to this lecture series for Odisha Public Service Commission's Odisha Administrative Service Examination, right? So, the date of the Odisha Administrative Services Examination have been tentatively announced for the 7th of June, right? So, it might happen on 7th of June or later, but whatever it is, the tentative date is less than 100 days away from today, right? So, you have a very less time to prepare for this exam, right? So, for that reason, at Percham classes, we have started the Odisha Public Service Commission Prelims 2026 crash course, right? So this is one of its first kind in India where you will be getting everything covered related to prelims in this crash course, right? This will be the entire crash course will be covered in 70 days. Everything, whatever is there in the syllabus, the PYQs, notes, test, everything will be given here, right? So we'll be covering the OPSC prelims crash course in 70 days, and herein you'll be getting the 200 plus recorded classes. You'll be getting how much classes? 200 plus recorded classes, right? And that will, apart from recorded classes, you'll be also getting the live batches, right? We'll be conducting the live batches, doubt clearing sessions, mentorship sessions, everything will be covered here, right? Notes will be provided to you, structured notes for the prelims, PYQs will be given to you, test series will also be given to you, and will be covering all subjects like geography, polity, history, modern history, ancient history, medieval history, Odisha history, Odisha geography, complete Odisha GK, the general and Odisha's current affairs, the general mental ability, art and culture, general science, environment, all the topics that is there in the Odisha Public Service Commission prelims will be covered in this batch. So this batch is going to be very very important because top educators from India are involved in this, in the creating this batch, and this batch will start on 21st 25th of March this month, and this will end on 3rd of June, just before the prelims. Okay, so for that reason this batch is going to be very very important. And apart from that, we have in person classes started all in one state PCS, right, batch, and for the 26-27, and this batch caters to various no state PCS examination. Almost every state species have been covered, but this is specifically catered for the these states, right? Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, West Bengal, Assam, right, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh. So these states, if you belong from these states, this is must have badge for you, because this in this badge, if you avail this badge, you will be getting access to every other no state PCS materials, the classes, everything will be availed to you. And most important part is, this is in 1 year program, but this has lifetime validity. Once you avail this badge, you will have access to everything, the classes, to everything, notes, classes, PYQs, everything for the lifetime, right? So sometimes what happens is that one person is not appearing for one exam only, right? For instance, some people, some aspirants staying in Delhi, Patel Nagar, right, he appears for Haryana Public Service Commission examination, he appears for UP PSC, he appears for Rajasthan PCS. So if you are that kind of aspirant as well, this is going to be helpful. But if you are appearing for only one particular state PCS, like if you are appearing for MP PCS, right, so this is going to be very important, so this is first of its kind in India, so for that reason this is very very important. And here you will be getting the mathematics being covered by Richa ma'am here, and exclusive answer writing programs will also be there, and one to one doubt clearing sessions, mentorship session, this is a very important thing nowadays, and one to one doubt clearing sessions will be given here. Detailed mapping, in-depth news analysis, everything will be covered here. So to avail this batch, you can contact in this number, and support is also there, right? You can email here. And apart from that, all in one state pieces one liner is also have been also released by the person classes. And this ebook has, it has been released in English version, and this has 16,000 plus one liners. Okay, so if you want to cover the GK, so this is going to be a very very important book, and this has 16,000 plus one liners. All state PCS exams will be covered here, and the subject wise, right, these 16,000 जो वन लाइनर्स है, दैट हैज बिन डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट वाइज. तो आप अगर यहाँ पे पॉलिटी आपका वीक है, तो यू कैन गो टू पॉलिटी सेक्शन.
इफ योर वीक सेक्शन इज इकोनॉमी तो आप जा सकते हो इकोनॉमी सेक्शन में, अगर आपका ज्योग्राफी वीक सेक्शन है तो ज्योग्राफी में जा सकते हैं। तो यू कैन प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन योर वीक एरियाज, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में ये जो है 16,000 जो एमसीक्यू है यहाँ पे डिवाइडेड है, राइट, एंड टॉपिक वाइज भी है। सो इफ यू वांट टू अवेल दिस वन ऑल इन वन स्टेट पीसीएस वन लाइनर एज वेल, यू कैन कॉन्टैक्ट, राइट, परचम क्लासेस में भी बाई कर सकते हो यहाँ पे हमारा वेबसाइट में। एंड a festive sale is going on in for some classes, so this is a very important thing. So if you are willing to avail these batches, if you want to buy these courses between the 18th of March 5 p.m. and the 21st of March 5 p.m. on the Percham app, right, you will be getting 50% discount. So this is a huge amount, right? So if the batch, the amount of batch is 50,000 rupees, okay, if the, let's say not the 50,000, let's say 20,000 rupees, if the batch amount is 20,000 rupees, you will be buying this batch in only 10,000 rupees. So you can imagine if the batch, the cost of batch is 10,000, you'll be getting that batch in only in 5,000 rupees. So this is a huge discount that we are offering at Percham classes. So you can avail all these batches, all these things at once at the Percham classes, right? Let us start with today's session. Today's session is about the OPEC OS prelims examination, and prelims is knocking the door, and this is the introductory session in the sense this is a very holistic introductory session. यहाँ पे ना हम ये नहीं प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी, पास्ट 5 ईयर्स में प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था, किस सब्जेक्ट को आपको वेटेज देना है, रेफरेंस बुक क्या क्या है ना, सक्सेस स्ट्रैटेजी क्या क्या होगा, पीवाईक्यू ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है, वो सब चीजें हम यहाँ पे एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, राइट। सो बियर विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन रीच आउट टू अस एज वेल, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, है ना, टॉकिंग अबाउट द ओपीएससी प्रीलिम्स, है ना, व्हाट डज द प्रीलिम्स टॉक अबाउट? The OPSC prelims structure basically it is of UPSC pattern as we all know, है ना। तो OPSC का जो पैटर्न है, UPSC का जो प्रीलिम्स का पैटर्न सिमिलर है, ठीक है, OPSC प्रीलिम्स का पैटर्न। तो यहाँ पे एक पेपर है जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड द जनरल स्टडीज पेपर 2, राइट। तो जनरल स्टडीज जो पेपर 1 है ये 200 मार्क्स का आता है, राइट, 200 मार्क्स का आता है। एंड जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है दैट इज CSAT, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, राइट, एंड इट कैरीज 200 मार्क्स एज वेल, ठीक है। तो आपको ये चीज जानना है, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2, ठीक है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। एंड जो CSAT होता है, CSAT यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, वो सब चीजें होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों का पेपर का हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे क्या क्या आएगा, है ना। तो CSAT एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, राइट, बट इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल, है ना। तो अगर हम प्रीलिम्स का बात करेंगे, है ना, प्रीलिम्स में पेपर 1, जीएस पेपर 1 का बात करेंगे, तो यहाँ पे ये है मेन सिलेबस। सो दीज आर द मेन सिलेबस विच आर देयर इन द OPSC प्रीलिम्स, राइट। तो फर्स्ट विच इज द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो दिस इज द थिंग similar to UPSC, ठीक है। if you are preparing for UPSC as well, है ना, I have appeared for UPSC, various stages I have given, UPSC mains, interview, everything, ठीक है। तो this syllabus, I see the OPSC syllabus similar to the UPSC, है ना। if you are attempting the OPSC, you must attempt the UPSC, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ये फोकस किया गया है, ठीक है। तो नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि रिसेंटली क्या हो रहा है अभी, है ना, अभी वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, ईरान को अटैक कर दिया है इसराइल ने, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, ट्रंप ने जो है वहाँ पे ईरान के फैसिलिटीज में अटैक कर दिया, ठीक है। एंड ईरान इज ऑल्सो टेकिंग अ रिवेंज, है ना, इट हैज ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है ना, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो वहाँ पे जो वॉर हो रहा है, ठीक है, इसमें इंडिया में इन्फ्लेशन का कैसा इम्पैक्ट हो रहा है ना, क्रूड ऑयल का प्राइसेस कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो पहले 70 बैरल्स हुआ करता था, है ना, जब स्टार्ट वॉर हुआ था 70 बैरल्स हुआ था ब्रेंट क्रूड का प्राइस। तो आपने सुने होंगे वेस्ट टेक्सास क्रूड होता है, ब्रेंट क्रूड होता है ना। तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस 70 बैरल्स हुआ करता था, अभी ये अराउंड 110 बैरल्स हुआ है, ठीक है। इंडिया में जो LPG रिक्वायरमेंट है, वी इंपोर्ट अराउंड 60% ऑफ LPG इंपोर्ट्स फ्रॉम द दैट मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है। तो इंडिया में LPG का क्राइसिस भी आ रहा है।
तो ये सब चीज़ ना आपको जानना है, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। यूपीएससी में जितना देखना जाना है वर्ल्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, उतना देखना नहीं जाना है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जैसे कि यूक्रेन रसिया वॉर, है ना? तो वो सब चीज़ें जानना है। नेशनल इशू क्या-क्या है, राइट? नेशन में अभी रिसेंटली क्या-क्या हो रहा है? वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हो रहा है, कई सारा स्टेट्स हो रहा है। वहाँ पे मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया गया है कई सारा स्टेट्स में। तो आपको जानना है कि व्हाट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट? एंड हाउ इसका इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानना है, जैसे कि मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया में जो टीएन सेशन था, राइट? आपने सुने होंगे नाम टीएन सेशन, right? He was the election commissioner of India. He was responsible for various reforms in the election commission, right? In the election related things in India, right? He was the person to introduce the voter ID system, ID card जो अभी issue होता है ना? And he was the person who was behind this model code of conduct. तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ना? एंड वो सब चीज़ें आपको जानना है, इलेक्शन कमीशन का क्या पावर है। अभी एसआईआर इज बज़वर्ड, है ना? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बंगाल में इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है? तो ये कौन सी एक्ट के तहत ये एसआईआर का पावर आता है, व्हाट इज एसआईआर? तो ऐसे आपको ना नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस है वो चीज़ें आपको जनरली आपको जानना है, राइट? तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर किया जाएगा, विल कवर एवरीथिंग हियर, ठीक है? एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है? तो इंडिया का जो हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री से लेके, है ना? जैसे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री इन द सेंस प्री हिस्ट्री तक जाना पड़ेगा आपको, जैसे कि पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियद, न्यूलिथिक पीरियड, उसके बाद आता है ना? आयरन एज आता है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? एंड उसके बाद आता है एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है, राइट? मेडिएवल हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? डायनेस्टीज, अगर आप ओडिशा में, है ना, ओडिशा का हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जानना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आपको जानना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी का रोल क्या था इंडिया में, है ना? यहाँ पे इंडिया में जवाहरलाल नेहरू का रोल क्या था, ठीक है? डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स का रोल क्या था, वो सब चीज़ें आपको जानना होता है, ठीक है? ओवरऑल आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको जानना है। इसका बुक लिस्ट है, क्या क्या है वो चीज़ भी आपको जानने का ज़रूरत है। एंड हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एंड ओडिशा नेशनलिज्म, ओडिशा, सिंस दिस इज एन ओपीसी एग्जाम, तो हिस्ट्री में भी ना आपको ओडिशा से स्पेसिफिक चीज़ें पूछा जाएगा। ओडिशा में कौन कौन सी फ्रीडम फाइटर्स का क्या क्या रोल रहा है ना? ओडिशा का हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है? एंशिएंट टाइम में ओडिशा किसका पार्ट हुआ करता था? यहाँ पे गंगा डायनेस्टी है, गंगा डायनेस्टी का रूलर्स कौन कौन थे, उनका रिफॉर्म्स क्या क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर्स क्या था, वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा। ओडिशा एंड इंडियन ज्योग्राफी, है ना? तो ओडिशा ज्योग्राफी भी जानना है आपको, ये भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ओडिशा का ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स, माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यू कहाँ है, राइट? All these things will be covered. Physical, socio-economic geography, right? And the इंडिया एज वेल एज यहाँ पे वर्ल्ड भी मेंशन आपको जानना है, राइट? सो वर्ल्ड ज्योग्राफी इन द सेंस, राइट, जैसे कि different type of the names of cyclones. Let's take an example, cyclones, है ना? इंडियन ओशन में साइक्लोन को साइक्लोन कहा जाता है, राइट? एंड इन द अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इन द यूएस कोस्ट, है ना, वहां पे इसको हरिकेन कहा जाता है, ठीक है? एंड इसका नाम जो है चेंज होता है, रीजन वाइज चेंज होता है, राइट? एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, राइट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, there are different names of the grasslands. सावाना ग्रासलैंड है यहाँ पे, है ना? बोरा ग्रासलैंड कहते हैं, कई सारा जो है ग्रासलैंड का भी नाम है डिफरेंट। तो ये सब चीज़ें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर होता है, राइट? एंड कॉन्टिनेंटल लैंड मास जो है ना? तो वो सब चीज़ें यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा। एंड लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी जितना इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका मानसून सिस्टम, मानसून का पैटर्न, है ना? द ऑनसेट ऑफ मानसून, ओडिशा में कब मानसून आता है, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इंडियन पॉलिटी, है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 21 में क्या है ना, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21A जो है ना, तो वो राइट टू प्राइवेसी कौन सी जजमेंट से ऐड किया गया था, है ना? कौन सी जजमेंट राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, पुट्टस्वामी जजमेंट, है ना? एंड जो ये केशवानंद भारती केस क्या है, राइट? वो सब केसेस एंड जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्या क्या है, जनरल वो आर्टिकल्स आपको जानना है, राइट? तो वो सब चीज़ें आपको जानना है। जो रिसेंटली कौन कौन सी आर्टिकल जो है ट्रेंड में है, न्यूज़ में जो है ना, आपको करंट से स्टैटिक लिंक करना है। करंटली कौन-कौन सी आर्टिकल जो है न्यूज़ में है, जैसे कि अभी रिसेंटली कौन सी एक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुने होंगे जहाँ पे एक केस हुआ था
पैसिव यूथनेसिया का केस हुआ था, है ना। तो पैसिव यूथनेसिया का केस में क्या हुआ कि एक हरीश राणा नाम का केस था। हरीश राणा, यू मस्ट हैव हर्ड, राइट। हरीश राणा वाज इन वेजिटेटिव स्टेट फॉर मोर देन 13 ईयर्स, ठीक है। तो वो हरियाणा में एक बिल्डिंग से गिर गए थे नीचे, तो वो ना वेजिटेटिव स्टेट में था। तो इंडिया में कोई लॉ नहीं है पैसिव यूथनेसिया, ठीक है। इंडिया में पैसिव यूथनेसिया ऑल्दो इट हैज बीन लीगलाइज्ड, है ना, बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट देयर इज नो लीगल लॉ, नहीं है, पार्लियामेंट द्वारा कोई लॉ नहीं बनाया गया। तो अगर आप, इफ यू आर इन अ डाइंग स्टेट, इफ यू आर इन कोमा, बट you want to die, right, your families are not able to bear the cost of all these things, but despite that you are not allowed to be killed, ठीक है। तो पैसिव यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया होता है। एक एक्टिव यूथनेसिया होता है जहाँ पे डायरेक्टली मार दिया जाता है पेशेंट को, एंड पैसिव यूथनेसिया होता है जहाँ पे पेशेंट का लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जो है हरीश राणा को, जो 13 साल से वो कोमा में था, उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो केस है, ये क्या जताता है, ये दिस इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, है ना। आर्टिकल 21 आपने सुने होंगे, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना। तो यू हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज वेल अंडर द आर्टिकल 21। तो ये हरीश राणा केस काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसे आपको ना करंट ट्रेंड से स्टैटिक ट्रेंड्स के साथ रिलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ओडिशा में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है ना। पार्लियामेंट, जैसे कि इंडिया में बाई कैमरलिज्म है ना। तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पंचायती राज सिस्टम क्या है, यहाँ पे डिफरेंट कमीशंस बनाता है ना। पंचायती राज 3 टियर कमीशन, जो पंचायती राज सिस्टम की किसने, किसके रिकमेंडेशन के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ, तो वो सब यहाँ पे पूछा जाता है ना। पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, तो ये सब यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस पार्ट में जो है ना आपको क्या पढ़ना होता है, गवर्नेंस पार्ट में इंडिया को कैसे गवर्न किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि देर आर डिफरेंट लॉ टू गवर्न इंडिया, राइट। जैसे कि यू कैन टॉक अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, right? National Disaster Management Act basically governs a disaster related thing in India. There is an Environmental Protection Act, right? Environmental Protection Act talks about the protection of environment in India. तो different laws, right? So वो सब चीजें गवर्नेंस में आता है। For instance, the Right to Information RTA Act of 2005, this talks about your right to access information, है ना, right to information. तो that is also part of freedom of speech, ठीक है। तो वो सब चीजें गवर्नेंस में आता है। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है, आपको दोनों चीज पढ़ के जाना है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो economic and social development, what is it? It basically talks about the how the India's economy is performing, and not only of India, since this is a OPSC exam, herein you have to know the what is the current status of Odisha economy, right? Odisha economic survey, and how the Odisha performed last year, है ना, and how the Odisha plans to perform in the future. What is the status of GDP in Odisha? What is the status of GDP in India, right? And what is the projection of GDP, है ना। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है इंडिया का, है ना। ओडिशा का ट्रेड जो रिलेटेड फिगर्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको जानना है, इकोनॉमी, है ना। एंड यहाँ पे जो है पॉवर्टी क्या है, स्टेटस, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स क्या है ओडिशा का, इंडिया का, है ना। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्या है, वो सब चीज़ें इसके अंडर पढ़ना होता है, ठीक है। एंड वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे परचम क्लासेस का जो क्रैश कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में दिया जाएगा। एंड जनरल इशूज ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, है ना, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पढ़ना होगा आपको। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, जैसे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, है ना। अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या है, गामा डाइवर्सिटी क्या है, बीटा डाइवर्सिटी क्या है ना। द बायोडाइवर्सिटी क्या है ना। इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है, द बायोडाइवर्सिटी जो है कितना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में, राइट। वेस्ट जो उड़ीसा में कितना नेशनल पार्क्स है, एलिफेंट रिजर्व्स है, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करना होगा। करंटली जो क्लाइमेट चेंज का ट्रेंड्स है, आईपीसीसी का रिपोर्ट्स क्या बताता है उड़ीसा के बारे में, इंडिया के बारे में, है ना। रियो अकॉर्ड्स क्या है, पेरिस अकॉर्ड्स क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे करना होगा, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। एंड उसके बाद जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस में आपको जनरल साइंस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि
जो एनसीईआरटीज़ में लिखा होगा आपने, आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो एनसीईआरटीज़, अगर स्टेट बोर्ड बोर्ड में हो तो स्टेट का जो बोर्ड का बुक्स है वहाँ पे मेंशन किया होता है ना, जैसे कि जो फिजिक्स है, बायोलॉजी है ना, केमिस्ट्री है, उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछा जाएगा, राइट। फॉर इंस्टेंस आपको कि गोल्जी बॉडीज़ क्या है, राइट, आपको पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, है ना, ये सब जनरल साइंस का चीज़ें है, राइट। तो कॉस्टिक सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, इसका यूजेस क्या है, तो वो सब चीज़ें जनरल साइंस आपको बेसिक बुक से कवर करना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिसेंट ट्रेंड डीआरडीओ कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसरो का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन क्या है, रिसेंटली क्या क्या लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च हुआ था, क्या क्या रॉकेट लॉन्च किया इसरो ने, है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इसी टॉपिक में कवर होता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स पेपर दैट आई टॉक्ट अबाउट, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करना होता है प्रीलिम्स पेपर 1 में। अगर वेटेज का बात करेंगे, राइट, अगर ओपीएससी में वेटेज का बात करेंगे तो ओडिशा स्पेसिफिक जीके इज नॉट कमिंग मच इन एग्जाम, राइट। सो दिस इज वेरी, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्निंग थिंग एज वेल, बिकॉज है ना, ओडिशा के लिए आप पढ़ रहे हो, लेकिन ओडिशा का ना जीके आजकल मैंने पास्ट का जो ट्रेंड है मैंने एनालाइज भी करके यहाँ पे डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि वेरी लेस ओडिशा स्पेसिफिक जीके इज बीइंग आस्क्ड, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू इग्नोर द ओपीएससी जीके, ठीक है। क्योंकि देखो ओपीएससी से के रिलेटेड आप पढ़ रहे हो ना, तो हो सकता है आपको कोई दिन ज़्यादा भी पूछ जाए, है ना, पूछ लो, अब पूछ ले। अगर आप प्रीलिम्स में वेटेज नहीं है, प्रीलिम्स के लिए ये नहीं भी पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है नो ओडिशा जीके, क्योंकि ओडिशा से रिलेटेड आपको इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाएगा। अगर आप यूपीएससी में भी इंटरव्यू दे रहे हो तो ओडिशा आपका अपना स्टेट के बारे में तो काफ़ी चीज़ें आपको जानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ओडिशा जीके इज इम्पॉर्टेंट डिस्पाइट इट इज बीइंग आस्क्ड लेस इन द प्रीलिम्स, ठीक है, ओपीएससी प्रीलिम्स। तो यहाँ पे पास्ट 5 ईयर्स में कम ही क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली 2 to 3, समटाइम्स 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है पूरा प्रीलिम्स में। एंड सो और मेन फोकस शुड बी ऑन द इंडिया जीके, यहाँ पे आपको फोकस करना है इंडिया, पूरा इंडिया स्पेसिफिक जीके जो है उसको आपको कवर करना होगा, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओडिशा जीके, है ना, फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड बट फ्रॉम द वेरी वेरी टॉपिक्स, तो यू कैन नॉट से कि इसी टॉपिक से ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आप मुझे सवाल करेंगे कि यहाँ पे ओडिशा मानसून से पूछा जाएगा क्वेश्चंस, यहाँ के गंगा डैनेज से पूछा जाएगा, तो ऐसे नहीं बता सकते, सभी टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन रिसेंटली मैंने एक ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड दिखाई दिया कि यहाँ पे कुछ टॉपिक है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओडिशा की हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछा जाता है अपार्ट फ्रॉम अदर टॉपिक्स, ठीक है। तो जनरली 2 3 क्वेश्चंस और 4 up to 4 क्वेश्चंस इन वन पेपर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द ओडिशा रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है। तो वो चीज़ हम फोकस करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नॉट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, यू शुड नॉट इग्नोर द ओडिशा जीके, राइट, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू कवर द ओडिशा स्पेसिफिक थिंग्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, राइट। सो फॉर दैट रीजन, तो देखो ओडिशा प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करेंगे तो 2020 में पॉलिटी से 13 क्वेश्चंस पूछा गया था, 13 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी। हिस्ट्री से 14 क्वेश्चंस पूछा गया था, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चंस पूछा गया था, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक से 17 क्वेश्चंस, राइट, एनवायरनमेंट से 12 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स से 11 क्वेश्चंस एंड ओडिशा जीके से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था, बस 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है। तो ओडिशा जो प्रीलिम्स में इतना एक ही क्वेश्चन था, लेकिन ये जो जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ से भी आपको ये जो बाकी चीज़ें है, राइट, अपार्ट फ्रॉम ओडिशा जीके, ये इसमें भी ओडिशा से रिलेटेड चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ये मत मानो कि पॉलिटी से पूछा जा रहा है मतलब वहाँ पे पूरा नेशनल होगा। समटाइम्स हो सकता है कि ओडिशा न्यूज़ में था, है ना, पॉलिटी से रिलेटेड थिंग के लिए ओडिशा न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो आपको जो है स्टेट ओडिशा में क्या हो रहा है उसको नेशनल न्यूज़ के साथ कनेक्ट करना है, राइट। तो हिस्ट्री से भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हिस्ट्री एंड कल्चर से, हो सकता है ओडिशा में एक बुद्धिस्ट साइट मिला रिसेंटली कल्चर में, राइट, तो उस कल्चर में जो है वहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन, राइट। सो दैट इज पार्ट ऑफ द ऑल्सो द नेशनल करंट अफेयर्स एज वेल एज द ओडिशा करंट अफेयर्स, राइट। तो आप याद रखिएगा वो चीज़। एंड 2022 में अगर देखेंगे तो पॉलिटी से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन, इकोनॉमी से बेसिकली 27 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 5 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 7, यहाँ पे जो है ओडिशा जीके से 12 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो मैंने बता दिया आपको इग्नोर नहीं करना है, 12 क्वेश्चन मीन्स 24 मार्क्स, राइट। तो दिस इज अ
यू कैनॉट प्रेडिक्ट, कभी ज़्यादा पूछा जा सकता है, कभी कम कम पूछा जा सकता है, राइट। एंड 2023 में अगर बात करेंगे तो पॉलिटी से 21 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 13 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 14 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन एंड देयर वर नो क्वेश्चंस फ्रॉम ओडिशा जीके। अगर 2024 का बात करेंगे तो 17 क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटी, 14 क्वेश्चंस फ्रॉम द कल्चर, है ना, हिस्ट्री एंड कल्चर, 6 क्वेश्चंस फ्रॉम what the geography, 18 questions from the economy, 8 questions from science and tech, 13 questions from environment and 12 questions from current affairs, 10 questions huge, that is around 20 marks from the ओडिशा जीके 2025 रिसेंट मोस्ट रिसेंट एग्जाम। यहाँ पे पॉलिटी से 12 का 24 क्वेश्चन, है ना, करंट अफेयर्स से 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 17 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स से 7 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 19 क्वेश्चन, ओडिशा से 1 क्वेश्चन। सो दिस हैज बीन द ट्रेंड ऑफ द ओडिशा जीके इन द पास्ट 5 years एंड द डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल एंड विल बी प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ ऑफ दिस एज वेल, है ना। एंड ओडिशा स्पेसिफिक प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस का अगर बात करेंगे, है ना, तो ओडिशा का भी जो प्रीलिम्स है, कौन कौन सी टॉपिक में यहाँ पे फोकस किया गया है। 2020 में एक ही क्वेश्चन आया था, वो पॉलिटी से रिलेटेड था, है ना, पॉलिटी से रिलेटेड था। 2022 में जो ओडिशा स्पेसिफिक थिंग था, उसमें से जो है ओडिशा का कल्चर एंड हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस था, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। एंड ज्योग्राफी से, ओडिशा ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन था। 2023 में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था, राइट, देयर आर नो क्वेश्चंस फ्रॉम द ओडिशा जीके। 2024 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटी से 0 क्वेश्चन, जीके से 0 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 0, बट हिस्ट्री अगेन यहाँ पे ह्यूज रोल प्ले किया था। यहाँ पे ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी 2 क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड गया था। 2025 में पॉलिटी से 0 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ओडिशा स्पेसिफिक जीके इन फर्स्ट 5 years फ्रॉम विच टॉपिक। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है हिस्ट्री एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है एंड इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का अच्छे से फोकस करने का कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी, ओडिशा का फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू कवर दैट इन डिटेल एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को भी अच्छे से फोकस करने का कोशिश करेंगे अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, ठीक है। नाउ करंट अफेयर्स में जाते हैं, ठीक है, सोर्सेज का बात करेंगे। तो अगर सोर्सेज का बात करना है तो करंट अफेयर्स, सो फार एज करंट अफेयर्स कंसर्न, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, यू कैन रीड द डेली न्यूज़पेपर, है ना। अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पर पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, है ना। बट एट दिस लास्ट मोमेंट अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, टाइम कम है ना, तो इसीलिए आपको न्यूज़पेपर में ना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। क्योंकि शुरू-शुरू में क्या होता है ना, बच्चे क्या करता है कि न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देता है ना। दे स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड यू नो दे गॉट गेट इन्वॉल्वड इन द न्यूज़पेपर, मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। एंड उसको कई बच्चे का जो है पढ़ाई का स्पीड भी नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटा रखना है। आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, सिलेबस अच्छे से अगर आपको याद है तो सिलेबस के साथ रिलेट करिए, क्या-क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम में। तो वो पीवाईक्यू सिलेबस से आपको याद होगा कि कौन-कौन सी टॉपिक आपका न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आजकल जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस का वीडियोज़ भी आता है ना, वो भी आता है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस का टॉपिक वाइज एनालिसिस भी आता है, तो वो सब भी आप देख सकते हो, है ना, पढ़ सकते हो। एंड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हमारा पचम क्लासेस का मैगजीन है ना, कई सारा जो है आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स मैगजीन, यू कैन रीड फ्रॉम एनी सोर्स, राइट। एंड गवर्नमेंट वेबसाइट एंड ऑफिशियल हैंडल्स, जैसे कि ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक वेबसाइट है ना, ओडिशा गवर्नमेंट का एनवायरमेंट का वेबसाइट है, तो उसमें ना ओडिशा से जो रिलेटेड स्कीम्स है वहाँ पे मिलेगा आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अगर वेबसाइट में जाओगे तो वेबसाइट में आपको कुछ डिटेल्स उस मिनिस्ट्री का क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या-क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो सब आपको आपको मिल जाएगा। तो यू कैन रेफर टू दीज़ थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड जो द न्यूज़पेपर पढ़ने का ना एक एडवांटेज है कि आपका वोकैब्युलरी डेवलप होगा, है ना, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये जो है न्यूज़पेपर रीडिंग काम में आएगा। एंड जब आप पेपर 1 भी करोगे, है ना, क्योंकि जो है आजकल का जो ट्रेंड जो है ना, यूपीएससी में भी, ओपीएससी में भी क्वेश्चंस थोड़ा लंबा होता है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, रीजनिंग में भी एंड जो जीएस पेपर 1 में भी एंड जीएस पेपर 2 में भी। तो आपका अगर जो है अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आप का जो है कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप इजीली वो चीज़ें को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट बनाना है।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओडिशा जो है, इसके लिए बुक लिस्ट अगर आपको रेफर करना है तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड स्पेक्ट्रम इज द मेन इंपॉर्टेंट बुक, राइट, यू मस्ट बी हैविंग दैट, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम जो राजीव आहिर का बुक आता है, राजीव आहिर, राइट, इसका ऑथर है राजीव आहिर, तो उनका जो है ये बुक आप पढ़ सकते हो, है ना। एंड क्लास नोट्स जो है हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, उसमें जो है स्ट्रक्चर नोट्स दिया जाएगा, राइट। एंड एंशिएंट एंड मेडिवल्स हिस्ट्री का अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो एक एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है वो आप पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन जो है ये आप स्किप भी कर सकते हो, नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा, ठीक है। आप स्टेट का ही जो उसमें जो आप जहाँ जिस स्टेट से हो आप, ओडिशा से हो, है ना, ओडिशा से, तो ओडिशा स्टेट बोर्ड का हिस्ट्री बुक भी आप पढ़ सकते हो, दैट विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट हियर। एंड जो एनसीईआरटीज का जो एंशिएंट एंड मेडिवल का बुक आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटीज जो होता है, एनसीईआरटीज क्यों रेफर करते हैं हम लोग, ये रेफर करते हैं क्योंकि एनसीईआरटीज आर रिटर्न इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटीज डिकोड करना काफ़ी इजी होगा, तो एनसीईआरटीज का आप बुक पढ़ सकते हो, है ना, फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल। एंड जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटीज का क्लास 11 का एक फाइन आर्ट्स का बुक आता है ना, फाइन आर्ट्स का बुक आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, वो आप रेफर कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेगा, है ना, इंडिया का फोक डांसेस, कई सारा चीज़ें, है ना, फोक कल्चर से रिलेटेड थिंग्स मिल जाएगा आपको। नहीं तो एक नितिन सिंघानिया का बुक भी आता है ना, इंडियाज आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, राइट, तो नितिन सिंघानिया का बुक भी आप पढ़ सकते हो, वो भी आता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल्ड है, आप उसमें ओडिशा स्पेसिफिक फोकस करिए, है ना। तो जब आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ोगे ना आप, तो उसमें जो है आपको ओडिशा रिलेटेड, ओडिशा में जगन्नाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या है ना, सन टेम्पल कोणार्क का आर्किटेक्चर क्या है, राइट, ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ना है ना। ओडिसी डांस क्या है, उसका फीचर्स क्या है, ओडिशा हिस्ट्री से रिलेटेड बुक के लिए आपको रेफर करना है हरिहर पंडा का बुक, राइट। सो हरिहर पांडा का बुक भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, यू कैन रेफर टू दिस, राइट। एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें आपको, इंडिया एंड ओडिशा दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बुक लिस्ट अब मैं रेफर करूंगा ओडिशा ज्योग्राफी से रिलेटेड, जीसी रे का, है ना, किताब महल पब्लिकेशंस का एक बुक आता है जीसी रे का, राइट। सो यू कैन रेफर टू दिस, यू शुड रेफर टू दिस इनफैक्ट, है ना। इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि ना ज्योग्राफी से रिलेटेड आई थिंक स्टेट स्पेसिफिक बहुत ही कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। लेकिन बाकी स्टेट का ना, स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी का बुक पर्टिकुलरली बहुत कम ही मिलता है मार्केट में। तो जैसे कि वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल में जो है स्टेट का जो बोर्ड का बुक ही रेफर किया जाता है जनरली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, यू कैन रेफर टू दिस। एंड एनसीईआरटीज का जो ज्योग्राफी है ना, जो ज्योग्राफी है क्लास 11-12, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का ज्योग्राफी एक फिजिकल ज्योग्राफी में डिवाइडेड है ना, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, दूसरा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट, द एग्रीकल्चर, है ना, इंडस्ट्रीज, वो सब आता है। तो बेसिकली यू कैन रेफर टू दीज बुक्स। एंड इंडियन ज्योग्राफी अगर बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी आप यहाँ पे जीसी लियोंग भी रेफर कर सकते हो, है ना। जीसी लियोंग पतला सा बुक है, लेकिन काफ़ी चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ है, जीसी लियोंग आप रेफर कर सकते हो, है ना। इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी है, जीसी लियोंग का मोस्टली फिजिकल ज्योग्राफी कवर करता है ना, जैसे कि लैंड फ्रॉम प्लेट्यू, द माउंटेन्स, है ना, फोल्ड माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रेफर किया गया। एंड अटलास, आपके पास एक अटलास होना चाहिए, जनरली मैं रेफर करता था ब्लैक स्वैन का, एक अटलास आता है, ब्लैक स्वैन का अटलास, है ना, नहीं तो आपका ओरिएंट पब्लिकेशन का अटलास आता है, तो कई सारा अटलास आता है, तो ब्लैक स्वैन का काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ना जब ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, आपको मैप हैंडी रखना होगा कि प्लेसेस एंड न्यूज़। तो रिसेंटली अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज़ में था, तो आप मैप खोल के देख लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ कहाँ है ना, कौन सी जो सीज को ये कनेक्ट कर रहा है ना, वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईरान से कितना दूर है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है याद रख पाएगा आप अगर मैप देखोगे, तो इसीलिए मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ज्योग्राफी के प्रिपरेशन में। एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अगर बात करेंगे, तो इसके बुक लिस्ट में है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, राइट, दिस इज यूपीएससी में तो इसको बाइबल कहा जाता है ना, यू दिस इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पे कई सारा चीज़ें, ये छोड़ के आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप इससे भी अगर ऊपर पढ़ना चाहते हो, है ना, आपको डिटेल में पढ़ना है, बाद में यूपीएससी के लिए पढ़ना है, तो आप डीडी बासु का बुक भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो डीडी बासु का एक बुक है इंडियन पॉलिटी का, वो भी आप रेफर कर सकते हो। गवर्नेंस भी यहाँ पे ओडिशा से रिलेटेड, ओडिशा जो है ओपीएससी से रिलेटेड उतना डेप्थ में गवर्नेंस पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। तो एम लक्ष्मीकांत में जो गवर्नेंस का चीज़ें दिया गया है वो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एम लक्ष्मी गवर्नेंस का बुक भी आता है अलग से, लेकिन जो है अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता अलग से आपको पढ़ने का जरूरत है ना। पीआईबी का न्यूज़ आता है, पीआईबी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि पीआईबी एक गवर्नमेंट का सोर्स है, राइट। सो दिस इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेता है ना, रिसेंटली क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, स्टेट द्वारा, तो यहाँ पे दिया जाता है पीआईबी में। तो पीआईबी आपको रेफर करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स कंपाइलेशन, कोई भी मैगजीन, स्पेसिफिकली परचम क्लासेस का जो मैगजीन होता है, तो वो सब मैगजीन से आप गवर्नमेंट स्कीम्स का कंपाइलेशन पढ़ सकते हो। इकोनॉमी सोर्सेस एनसीईआरटी बेसिक्स, है ना, एनसीईआरटी का जो बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बुक बताऊंगा यहाँ पे, वो है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बुक आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी का ये बुक है, राइट। द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द बुक ऑफ एनसीईआरटी, क्लास 11th का है, राइट, क्लास 11th और मे बी 12th। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, नॉट द माइक्रो, राइट, नॉट द माइक्रो, माइक्रो आपका इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन ये मैक्रो पढ़ना है। मैक्रो में आपका जो है कई सारा टॉपिक्स, जैसे कि व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज़ें सब क्लियर यहाँ पे दिया गया है ना। माइक्रो में आपको जो है, अगर आप इकोनॉमी में मास्टर्स करना चाहते हो, इकोनॉमी के फील्ड में जाना चाहते हो, है ना, ग्राफ्स चार्ट्स कई सारा चीज़ें, फॉर्मूलाज, वो सब जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का पढ़ना है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास 9-10 का वो बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड इकोनॉमी मटेरियल कोई भी आप हमारा जो परचम क्लासेस का मटेरियल है ना वो ले सकते हो। एंड यहाँ पे उड़ीसा में जो है, उड़ीसा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है, उड़ीसा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे यहाँ पे इस जो है हमारा परचम क्लासेस का इस क्रैश कोर्स में, ठीक है। नाउ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो बुक है, एनवायरमेंट में क्लास नोट्स एंड लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है ना, क्लास नोट्स एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी का जो क्लास 12 में एक बायोलॉजी बुक आता है ना, क्लास 12 में क्लास 12 का एक बायोलॉजी बुक है एनसीईआरटी का, उसमें लास्ट 4 चैप्टर में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है। उसमें बायोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है ना, तो वो सब दिया गया है। तो वो 4 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो पढ़ सकते हो आप। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी का जो क्लास 6 to 10 जो है साइंस का, एनसीईआरटी का तो एक ही बुक आता है, फिजिक्स का नहीं, अलग से नहीं आता है, केमिस्ट्री का अलग से नहीं आता है ना, स्टेट बोर्ड में जैसे होता है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक बुक आता है साइंस का बुक, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या क्या है ना, कोर सब्जेक्ट्स मैंने जैसे बताया, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, है ना, नहीं तो कोई भी बुक, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड विथ ऑल, है ना, स्टेट से रिलेटेड एंड दो इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग यू शुड बी कवरिंग, द हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये है कोर थिंग्स आपको। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर दिस, यू हैव टू डू दिस थिंग्स। नाउ बात करते हैं पेपर 2 सी सैट के बारे में, है ना। तो ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो यहाँ पे ना आपको आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, है ना। तो एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। पेपर स्ट्रक्चर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 200 मार्क्स का रहता है एंड 100 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस, तो इंटू 2 मार्क्स इंटू इक्वल टू 200 मार्क्स। नेचर क्वालिफाइंग नेचर होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33, यानी आपको 33% ऑफ 200 कितना होता है, 66 मार्क्स लेके आना पड़ता है। लेकिन इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत बच्चे ये सोचता है कि ये तो 66 मार्क्स है ना, क्वालिफाइंग है, इसमें तो हम पास ही कर लेंगे, है ना, लेकिन ऐसे नहीं होता। देखो देखो बच्चों, आपको ना ये चीज़ याद रखना है, यूपीएससी में भी ये हो रहा है। यूपीएससी में पीपल आर गेटिंग 150 मार्क्स, है ना, वन समटाइम्स 130 मार्क्स, वो भी फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ द सी सैट। एंड ओपीसी में भी ये हो रहा है, उसका जीएस पेपर में काफ़ी अच्छा आ रहा है ना, लेकिन उसने इग्नोर किया द पेपर 2 को, ठीक है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है पेपर 2 को, सी सैट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, क्वालिफाइंग नेचर स्पेशली जो है ना। आजकल बच्चे क्या होता है कि कई बच्चे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे होता है, मैथमेटिक्स ऑनर्स किए बच्चे होता है, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उन लोग सोचते हैं कि भाई मेरे लिए तो सी सैट कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो उन लोग ही आजकल फेल कर रहा है ना।
तो मैंने कई सारा फ्रेंड देखा था अपना, तो यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे थे, कई सारा जो है एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे, ओपीएससी अटेम्प्ट कर रहे थे, उन्होंने सी सैट फेल किया बिकॉज दे वर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट, सम वर फ्रॉम आईआईटीज आईएम्स एज वेल, बट दे फेल्ड इन सी सैट बिकॉज दे थॉट दैट सी सैट इज ईजी। ठीक है, सो डोंट इग्नोर दिस पार्ट। एंड सिलेबस अगर बात करेंगे तो सी सैट में कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसमें एक पैसेज दिया रहेगा, तो पैसेज में भी कई सारा टॉपिक है। देखो, कुछ टॉपिक है फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, एक पैराग्राफ, है ना। कभी कभार आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है वो टॉपिक, कई कई कभी कभार वो इकोनॉमी से रिलेटेड, कई कभी कभार वो एथिक्स से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ना आपको ये भी याद रखना है कि कॉम्प्रिहेंशन जब पढ़ोगे ना, तो कौन सी आप टॉपिक्स अच्छे से समझ पाते हो। फॉर इंस्टेंस, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स होता है, जो टॉपिक्स होता है, जो थोड़ा डीप टाइप का टॉपिक होता है ना, लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक, उसको ना समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लिटरेरी लैंग्वेज में, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। तो वो सब चीज़ें जो कॉम्प्रिहेंशन में भी जो हाई जो है डिफिकल्ट जो टॉपिक्स है ना, तो उस टॉपिक्स को आपको फोकस करने का कोशिश करना है ना। कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने बताया, न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपका जो है टेस्ट किया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी वो टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना, आपका जो है वर्ड जो है अरेंजमेंट, वर्ड का मीनिंग, तो वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग जो स्किल है वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, है ना। तो आप कैसे क्रिटिकली थिंक कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर पा रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हो उस क्वेश्चन के थ्रू, वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। जनरल आपका मेंटल एबिलिटी क्या है वो टेस्ट किया जाएगा। न्यूमरेसी जो है यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी, जो नंबर सिस्टम्स, द रिलेशंस, है ना, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, वो सब चीज़ें क्लास 10 लेवल का बेसिक चीज़ें पूछा जाएगा। लेकिन आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि क्लास 10 लेवल का चार्ट है ना, ग्राफ्स है, टेबल्स है ना। जैसे कि एक स्कूल में 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट ने इतना परसेंट मिला, 10 जो जो बाकी 5 स्टूडेंट को इतना परसेंट मिला, जो पासिंग मार्क्स के इतना है 55 है, जो है यहाँ से कितना फेल हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वहाँ पे टेबल दिया रह सकता है, बार चार्ट, पाई चार्ट दिया रह सकता है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन में के लिए अगर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहाँ-कहाँ आपको वेटेज देना है ना, एंड कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो पीवाईक्यू ट्रेंड आप देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस पैसेजेस फ्रॉम स्टैंडर्ड सी सैट मटेरियल, जो सी सैट का जो मटेरियल्स होता है स्टैंडर्ड, है ना, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा, हम लोग भी प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे वी विल प्रोवाइड दैट, है ना। एंड तो सी सैट का मटेरियल्स जो है स्टैंडर्ड मटेरियल्स, वहाँ से पैसेजेस प्रैक्टिस करिए। एलआर एंड एनालिटिकल एबिलिटी में जो है टॉपिक्स यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग आ सकता है ना। कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज नंबर, सीरीज एंड अल्फ़ाबेट का सीरीज, जो एनालॉजी होता है वो सब, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंस, है ना, डायरेक्शंस, कोई एक नॉर्थ जा रहा है, उसके बाद ईस्ट गया, उसके बाद साउथ गया, नॉर्थ वेस्ट गया, तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशंस, है ना, सिलोलिज्म, तो सिलोलिज्म आपका जो वेन डायग्राम से ड्रॉ करना जनरली किया जाता है, तो वो सब सिलोलिज्म का क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में नेचर जनरली क्या है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो इफ़ यू हैव बीन पोस्टेड इन सम डिस्ट्रिक्ट एज अ एज अ कलेक्टर, तो यहाँ पे कम्युनल रियोट हुआ, तो आपका रैशनल डिसीजन क्या क्या होगा इसमें, है ना, तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिया हो सकता है, तो आपको चूज करना है कि कौन सी आपका रैशनल चॉइस ऑफ डिसीजन हो सकता है, राइट। तो आपका ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। टेस्ट जजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, अप्रोच कैसे करोगे, वो सब यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। अप्रोच, चूज एथिकल एंड प्रैक्टिकल ऑप्शंस, है ना, आपको एथिकल एंड प्रैक्टिकल ऑप्शंस चूज करना है। एक्सट्रीम डिसीजंस आपको अवॉइड करना है ना। जब भी आपका ऐसे क्वेश्चंस आता है ना, इस चीज का, इस टाइप का क्वेश्चंस, कि आपको, है ना, कैसे जो है अप्रोच करना है। कोई एरिया में कम्युनल रियोट हो रहा है, आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो वहाँ पे कैसे अप्रोच करोगे आप, है ना। आपको नहीं बोलना कि आप वहाँ पे जाके मारपीट करना शुरू कर दोगे, आप वहाँ पे जो है दोनों को जेल में डाल दोगे, है ना। आपको एथिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वहाँ पे दिखाना है, लॉ एंड सब चीज़ें वहाँ पे दिखाना है। तो वो सब टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, है ना, थ्रू द ऑप्शंस। एक्सट्रीम डिसीजन आपको यहाँ पे अवॉइड करना है डिसीजन मेकिंग में। जनरल मेंटल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक्स, एवरेज, है ना, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क,
है ना। जो टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सबसे जो जनरल क्वेश्चंस पूछा जाता है वहाँ से ये पूछा जाएगा। बेसिक 10 लेवल का क्वेश्चंस है, लेकिन आपका जो है थोड़ा एडवांस लेवल का थिंकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है। 10 लेवल में जो है ना, आप 10 लेवल मतलब ये एक्सपेक्ट मत करिए कि 10 लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बच्चे को पूछा जाता है 10 में, है ना, क्लास 10 में बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब अगर पूछा भी जाता है तो उतना सिंपल हो ना, एक दो क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग, क्योंकि आप तो मैच्योर्ड हो ना, तो आपका थिंकिंग थोड़ा हायर लेवल का एक्सपेक्ट किया जाएगा, राइट। तो 10 लेवल का क्वेश्चंस है, फॉर्मूला सब सेम है, लेकिन आपका थिंकिंग थोड़ा एडवांस लेवल का होना चाहिए। नाउ बेसिक न्यूमरेसी का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टॉपिक नंबर सिस्टम है, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो ये सब चीज़ें होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल का डेटा हो सकता है ना, बार ग्राफ का डेटा हो सकता है, बार में, है ना, बार में ऐसे टाइप का बार, है ना, ग्राफ में। एंड उसके बाद पाई चार्ट में क्या क्या है, इसका परसेंटेज 13% है, इसका 14% है, तो इस टाइप का, है ना। लाइन ग्राफ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड फोकस यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड, आपका अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे ना बेसिक न्यूमरेसी आप जब ये सब प्रॉब्लम करोगे, है ना, न्यूमरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम करोगे, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, है ना। कोई क्वेश्चंस आप दिमाग में ही सॉल्व कर लेना चाहिए कोई क्वेश्चंस को। एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आपका अप्रोक्सीमेट का आंसर क्या क्या होगा, थिंकिंग एबिलिटी जो है, आप सोच के भी आंसर आप उसका अप्रोक्सीमेशन ड्रॉ कर पाओ, तो इस टाइप का यहाँ पे होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। एंड अगर यहाँ पे बात करेंगे तो नेचर ऑफ द पेपर, ये मैंने बताया, जो सी सैट है क्वालिफाइंग होता है ना। आपको ओवर इन्वेस्ट भी नहीं करना है, लेकिन आपको नेगलेक्ट भी नहीं करना है, ओवर इन्वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में अगर पास नहीं होगे तो नहीं होगे, क्योंकि पेपर 1 ही आपका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मेरिट लिस्ट डिटरमिन करेगा पेपर 1। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपका ज़रूरत है यहाँ पे, दिन में 1-2 घंटा 3 घंटा आप रख लो। अगर देखो आप दिन में 7 घंटा पढ़ रहे हो, है ना, 7 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप रखो अराउंड 2.5 घंटे फॉर द सीसैट, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखो, नहीं तो 2 घंटा रख सकते हो आप। टाइम अलोकेशन लिमिटेड, लिमिट टाइम, यू नो, लिमिटेड पर डे पर डे इज टाइम पर डे इज सफिशिएंट। रेगुलर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट देन द लॉन्ग आवर ऑफ स्टडी, ठीक है। एंड की प्रिपरेशन जो अप्रोच है यहाँ पे, आपको कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस करना है, रीडिंग एबिलिटी डेवलप करना है। दिन में 1-2 आर्टिकल 3 आर्टिकल पढ़ लो अच्छे से, है ना। सॉल्व प्रीवियस ईयर सीसैट क्वेश्चंस आप कर लो। फोकस वीक एरियाज में फोकस करो। अगर आपका एचसीएफ एलसीएम वीक है, प्रोबेबिलिटी वीक है, तो उसमें फोकस करो, है ना। मेंटेन एक्यूरेसी ओवर गेस वर्क, एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करने का कोशिश करो। कॉमन मिस्टेक्स जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आप सीसैट जो है, जनरली हम सोचते हैं, मैंने बता दिया, ये आप इजी सोचते हैं, लेकिन इजी नहीं सोचना है। प्रैक्टिसिंग नॉट प्रैक्टिसिंग मैथ्स रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते कई बच्चे। टाइम मैनेजमेंट पुअर होता है कई बच्चे, है ना। कई बच्चे क्या करता है कि 20-25 क्वेश्चन नहीं कर पाते 2 घंटे में, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, टाइम मैनेज करना सीखना है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है ना। अगर टफ क्वेश्चन है, आप उसमें ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो, 6-7 मिनट एक ही क्वेश्चन में दे दिया, तो आपको नहीं करना है ऐसे, है ना। अगर एक क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। यू हैव टू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो लाइफ में भी मूव ऑन करने का आपको सीखना होगा। क्वेश्चन में भी सेम लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे। यू हैव टू मूव ऑन व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको जो है स्किप करना है ना। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि सी सैट ईजी है। तो स्कोरिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे होगा टारगेट सेफ स्कोर, है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स से ही ज़्यादा ही आप टारगेट करो, अराउंड 90 मार्क्स आप टारगेट करके चलो, ठीक है। तो ये चीज़ आप टारगेट करो, इससे ऊपर ही टारगेट करो, है ना। मैं तो कहता हूँ अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट, जहाँ पे जब आप एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आप ना स्ट्रॉन्ग एरिया को पहले करो। आपका अगर प्रॉफिट एंड लॉस लॉस स्ट्रॉन्ग है तो उसी से स्टार्ट करो। आप देखो पहले एक बार, पहले 1 मिनट में आप पेपर को गो थ्रू कर लो कि कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके लिए इजी है, तो उसको मार्क करके उसी से स्टार्ट करो। अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, आप अवॉइड करो, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, वो है कि ओपीएससी का जो है पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के बारे में हम जानते देखते हैं कि पीवाईक्यूज में प्रीवियसली क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे अराउंड 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। यहाँ पे ना मैंने क्योंकि सब चीज़ डाल दिया है, स्ट्रैटेजी से लेके, बुक लिस्ट से लेके, है ना, पीवाईक्यू से लेके, सब चीज़ यहाँ पे डाल दिया है ना, एनालिसिस से लेके। तो इसीलिए काफ़ी थोड़ा टाइम लगने वाला है, अराउंड 1.5 घंटा का सेशन होने वाला है। मे बी आई थिंक हाउ मेनी स्लाइड्स आर रिमेनिंग अराउंड, अभी भी काफ़ी स्लाइड्स रिमेनिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है
फर्स्टली जो है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है ओपीएससी से, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे डैश इज एन एक्सकेवेटेड साइट इन ओडिशा विच यील्डेड फेसेटेड होज, है ना, फेसेटेड होज, चीजल्स, पाउंडर्स, मेस हेड्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि ये कौन सी एरिया जहाँ पे ये सब फेसेटेड हो पाया गया, चीजल पाया गया, पाउंडर्स पाया गया, मेस हेड पाया गया, ग्राइंडिंग स्टोन्स। तो ये सब मैं ना एंशियंट जब पढ़ाऊंगा हिस्ट्री तो यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे ये होज है, चीजल्स है, ये सब क्या है ना, ये सब दीज आर पॉलिश्ड टूल्स। ठीक है, पॉलिश टूल है। पॉलिश टूल कहाँ पे पाया जाता है? पॉलिश टूल पाया जाता था न्यूलिथिक पीरियड में, राइट। तो न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे हम न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो ये न्यूलिथिक पीरियड के बारे में क्वेश्चन है इनफैक्ट। ठीक है, तो न्यूलिथिक पीरियड कौन सी जगह में है ये इनफैक्ट पूछा गया है। एंड तो आपको अगर न्यूलिथिक साइट्स के बारे में कुछ आइडिया है उड़ीसा में तो आप आंसर कर पाओगे। इसका आंसर होगा बी, है ना, गोलबाई ससान। गोलबाई ससान, द ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये चिलिका लेक, राइट, चिलिका लेक है उड़ीसा में, चिलिका लेक के पास लोकेटेड है। ठीक है, चिलिका लेक के पास लोकेटेड है। एंड बेसिकली ये क्या है? न्यूलिथिक चालकोलिथिक, है ना, न्यूलिथिक चालकोलिथिक का एक इंपॉर्टेंट साइट है। एंड अगर इसका बात करेंगे, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट इंपॉर्टेंट है ना। एंड यहाँ पे ये सब चीजें एग्रीकल्चरल टूल्स पाया गया है। तो ऑल दीज थिंग्स वर द एग्रीकल्चरल टूल, राइट। तो देखो, एग्रीकल्चर ना, न्यूलिथिक पीरियड को क्या बताया गया है? दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, राइट। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा गया, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा गया है। ये जो है न्यूलिथिक पीरियड को क्यों कहा गया? क्योंकि ना न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लोग घर बनाने शुरू कर दिए, सोसाइटी से स्टार्ट हुआ न्यूलिथिक के बाद। ठीक है, तो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा है किसने? गोल्डन चाइल्ड ने, वी गोल्डन चाइल्ड है, इन्होंने न्यूलिथिक को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा है, राइट। तो आपको जानना है ये कहाँ पे लोकेटेड है? गोलबाई शशांक सिलिका लेक के पास है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। ये assertion एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इन सेंट्रल एंड सदर्न ओडिशा द प्रोटेरोजोइक era is represented by the eastern ghats, है ना, ग्रैन्युलाइट बेल्ट which consist of खोंडलाइट, है ना, चारनकाइट, मिगमाटाइट, एंथ्रोसाइट, है ना, एनोडथ्रोसाइट एंड द अल्कलाइन रॉक्स। ठीक है, तो ये बताया है एसर्शन में। दूसरा है रीजनिंग, इसका कारण क्या हो सकता है? एसर्शन का कारण क्या है? दीज रॉक फॉर्मेशंस आर लिंक्ड टू द मिनरलाइजेशन ऑफ बॉक्साइट, मैग्नीज, ग्रेफाइट एंड जेमस्टोन्स। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्टली एक्सप्लेन्स द नो द ए। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है करेक्ट है। ऑप्शन बी में दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर डज नॉट करेक्टली, ये दोनों ट्रू है लेकिन आर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। सी में दिया है दोनों, सी में दिया है ए ट्रू है आर फॉल्स है। डी में दिया है ए ट्रू है लेकिन आर, ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। तो ऐसे जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जानना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक जगह एक में एक स्टेटमेंट होता है, उसका रीजन उसे जो है स्टेटमेंट में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन दिस। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, जो ईस्टर्न घाट में ग्रैन्युलर बेल्ट है बेसिकली ये प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन है, दिस इज करेक्ट, है ना, ईस्टर्न घाट में जो पाया जाता है। एंड यहाँ पे बेसिकली जो ये सब चीज़ें पाया जाता है, कोंडोलाइट, चारकोलाइट, है ना, मैग्माटाइट, ये सब चीज़ें ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ईस्टर्न घाट एरिया में यहाँ पे बॉक्साइट्स भी पाया जाता है, कई सारा चीज़ें, मैग्नीज भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो कारण दिया गया, रीजन दिया गया है, द रॉक फॉर्मेशन आर लिंक्ड टू द मिनरलाइजेशन ऑफ बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, ग्राफाइट, ये रीजनिंग करेक्ट नहीं है क्योंकि इट ओनली एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसको रीजन नहीं देता है, इसका कारण ये क्यों हो रहा है इसका रीजन ये नहीं देता है, ये जस्ट बताता है। ये रीजनिंग आप पढ़ो यहाँ पे, दीज रॉक फॉर्मेशन आर लिंक्ड टू द मिनरलाइजेशन ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि मिनरलाइजेशन कैसे हो रहा है ना, ये बता रहा है कि ये एडिशनल सोर्स दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है मिनरलाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है करेक्ट तो करेक्ट है लेकिन ए को जो है ये रीजनिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा मैं, ज्योग्राफी में ये सब चीजें कवर किया जाएगा, मिनरल्स, है ना, फेनरोजोइक एरा, वो सब। नाउ क्वेश्चन 3 इज
the Ganjam plates, right? Ganjam plates of the Madhav Raja II of the, you know, Sailodbhava dynasty. Sailodbhava dynasty provide the valuable information about which aspect of early medieval history. ठीक है, तो ये उड़ीसा का किससे टॉपिक है, ये medieval history से, early medieval history से क्वेश्चन है, एंड माधव राजा टू से रिलेटेड है क्वेश्चन, है ना. ऑप्शंस आर द जिनियोलॉजी एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ साइलोबाबा रूलर्स, है ना. मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुक्तेश्वरा टेम्पल, डी इज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद गुप्त एम्पायर. ठीक है, तो इसका क्या है, द आंसर क्या होगा इसमें, राइट. तो उसमें पूछा गया है, एंड देखो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, राइट. सो आंसर इज जिनियोलॉजी एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ साइलोबाबा रूलर्स. ठीक है, तो जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, है ना, लाइक द गंजम प्लेट्स, राइट, विच मेनली रिकॉर्ड्स द जियोलॉजीज, है ना. लैंड ग्रांट्स यहाँ पे दिया गया, टेरिटोरियल जो अथॉरिटी दिया गया है ना. साइलोबा इंस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स द डिटेल्स अबाउट द लीनियज एंड पॉलिटिकल कंट्रोल. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था, द गंजम प्लेट्स है माधव, ये जो गंजम प्लेट्स है यहाँ पे, है ना, इंस्क्रिप्शन है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, कौन सी एस्पेक्ट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है जीनियोलॉजी एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ साइलोबाबा रूलर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो रूलर्स मेंशन किया गया डायनेस्टी, उनका रूलर्स का जीनियोलॉजी के बारे में ये बताता है. ठीक है, तो ये भी हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है अगेन, है ना. तो ये भी मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है इनफैक्ट, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements about the OII PCRA is not correct, right? So what is OIPCA, वो भी हम बताएंगे. तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है ना. तो यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द OII PCRA इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज जॉइंटली फंडेड बाय ओडिशा गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक, राइट, एंड improves the irrigation and promotes the climate resilient agriculture. 3 is focuses mainly on large dams in coastal Odisha, supports the farmer training and the climate resilient smart agriculture. ठीक है, तो इसमें 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, ऐसे कोई करके जो है ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, राइट. तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, राइट, आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, राइट. सो सी इज द आंसर. तो बेसिकली जो OII PCRA है ना, ये बेसिकली फोकस करता है एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए, करने में ये फोकस करता है. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दिस फोकस ऑन इज दैट इट प्रमोट्स द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसमें भी ये फोकस करता है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द इट डज नॉट प्राइमरीली एम्फसाइज ऑन द लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो लार्ज स्केल जो डैम कंस्ट्रक्शन है उसमें ये उसको ये प्रमोट नहीं करता है. एंड दिस बेसिकली स्पेसिफिकली नॉट लिमिटेड टू कोस्टल ओडिशा ओनली, राइट. सो ये कोस्टल ओडिशा से ही रिलेटेड नहीं है, तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग हियर, राइट. तो बेसिकली दिस इज द थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, राइट. तो OII PCRA बेसिकली ये इससे रिलेटेड जो आंसर होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ना, यहाँ पे देखिए एक्चुअली 1 ओनली नहीं है, ये ओनली 1 है ना, ओनली 2, राइट, ओनली 3, ठीक है, ओनली 4 है, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट है. ये OII PCRA ये है ओडिशा एंड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक ने जो जॉइंटली फंड किया हुआ प्रोजेक्ट है. इरिगेशन एंड जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर ये प्रमोट करने का कोशिश करता है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, एंड फार्मर ट्रेनिंग एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रमोट करता है ये. ठीक है, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. तो 3 इनमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, तो आपको ये चीज जानना है, इस टाइप का यूपीएससी पैटर्न का पूरा क्वेश्चन है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच मुगल एम्परर अपॉइंटेड द फर्स्ट सेपरेट सूबेदार ऑफ ओडिशा एंड व्हिच डिड नॉट, when did Odisha become the separate सूबा, राइट. तो ये क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, मुगल एम्पायर से रिलेटेड है. तो ऑप्शन है अकबर 1593, औरंगजेब 1658, शाहजहाँ है ना 1628, जहांगीर 1697. तो आपको यहाँ पे ईयर भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा. तो अकबर ने बेसिकली क्या किया था, सेपरेट सूबेदार ऑफ नो ओडिशा अपॉइंट किया था पहली बार, राइट, द फर्स्ट टाइम. तो अकबर बेसिकली ये किया था, एंड उन्होंने क्या किया था कि ओडिशा उसके टाइम में एक सेपरेट सूबा हुआ था 1593 में. तो आपको याद रखना है अकबर के टाइम में ओडिशा एक सेपरेट सूबा हुआ था, राइट, सेपरेट सूबा हुआ था.
ठीक है? तो आपको याद रखना है, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो मेडिएवल हिस्ट्री से जो भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उससे भी स्टेट से स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको स्टेट को लिंक करना है ना? वहाँ पे स्टेट को लिंक करके पढ़ना है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सीएम किसान स्कीम इज़ नॉट करेक्ट? तो देखो नेशन में क्या है, इंडिया में पीएम किसान इंपॉर्टेंट है ना? इंडिया के लेवल में देखोगे, तो लेकिन यहाँ पे जो है ओडिशा ने अपना ही स्कीम स्टार्ट किया है, उसका नाम है सीएम किसान, है ना? तो ये फार्मर से रिलेटेड है ना? फार्मर से रिलेटेड है, उसको पेमेंट से रिलेटेड उसको जो है इनकम सपोर्ट देने का कोशिश करता है ये पीएम किसान। तो उसका ही एक ओडिशा स्पेसिफिक स्कीम है। तो कोई भी चीज़ें मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें, कोई भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो उसका ना आप स्टेट का जो क्या है, स्टेट ने क्या किया है उससे रिलेटेड आपको रिलेट करने का कोशिश करना है, ठीक है? तो दैट इज़ द थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द ओनली लार्ज फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम हियर। इनपुट सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड, है ना? एंड कृषि विद्या निधि सपोर्ट्स द एग्रीकल्चरल एजुकेशन, 4 इज द स्कीम इज इंक्लूसिव, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री, वन एंड फोर, कौन सी आंसर ऑप्शन करेक्ट है? आंसर इज ए, राइट? तो ए ओनली करेक्ट, राइट? ओनली लार्ज फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम हियर इज नॉट करेक्ट। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट दिया हुआ है, आपको जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे ना, आपको जो जो की पॉइंट है वहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करके रखना है, सर्कल करके रखना है। तो यहाँ पे ना ये नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है? नॉट करेक्ट पूछा है मतलब यहाँ पे आपको जो इनकरेक्ट है उसको एलिमिनेट करना है ना? तो देखो एक एलिमिनेशन का टेक्निक होता है, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, मैं उसका भी एक सेशन करूँगा, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्रोच करना है वो सब चीज़ें, है ना? तो स्मार्ट वे ऑफ आंसरिंग। तो जब भी आपको आंसर्स में ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिखाई देगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, राइट? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जब भी आपको दिखाई देगा, तो वो सब स्टेटमेंट्स को आपको हटाना है, राइट? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जैसे कि नेवर, है ना? ओडिशा वाज नेवर पार्ट ऑफ द सुबह ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना? तो ऐसे नेवर स्टेटमेंट, है ना? एंड यहाँ पे जैसे कि ओनली, नेवर ओनली, है ना? ओडिशा ओनली लार्ज फार्मर विल बेनिफिट, व्हाट अबाउट द अदर फार्मर्स, है ना? छोटा-मोटा फार्मर को बेनिफिट नहीं होगा क्या? तो ऐसे इस टाइप का स्टेटमेंट, है ना? अ, तो इस टाइप का स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ओनली लार्ज फार्मर्स बेनिफिट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनपुट सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कृषि विद्या नीति सपोर्ट एग्रीकल्चरल एजुकेशन को सपोर्ट करता है ना? जो है स्कीम इंक्लूसिव भी है, राइट? तो आपको जानना है ये स्मॉल एंड लार्ज फार्मर दोनों जो है इसमें बेनिफिशियरी है। स्मॉल एंड लार्ज फार्मर बोथ आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम, ठीक है? तो दैट इज द थिंग यू शुड बी नोइंग एंड other statement are correct, so one is incorrect statement. Now moving on to question number 7, under which Mughal emperor was the office of the मुतासिब, राइट? मुतासिब इंस्टीट्यूटेड इन ओडिशा। मुतासिब, राइट? तो ये ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर, डी इज हुमायूं, राइट? तो क्या है इसका आंसर? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मीनवाइल वी डिस्कस द क्वेश्चन, है ना? तो देखो आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, इफ यू नो द आंसर, व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, है ना? तो देखो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस में ना आपको जो है फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने किया था इनफैक्ट, ये आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, राइट? औरंगजेब बेसिकली अपॉइंटेड द ऑफिस ऑफ मुतासिब, है ना, इन ओडिशा, ठीक है? तो ये चीज आपको जानना है। एंड ये क्यों इम्प्लीमेंट किया था औरंगज़ेब ने? ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया था इस्लामिक मोरल कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बेसिकली औरंगज़ेब क्या थे ना, औरंगज़ेब एक काफ़ी रिलीजियस पर्सन थे, राइट? ही कन्वर्टेड नो मैनी लैक्स ऑफ हिंदूज़ टू द इस्लाम, तो ये भी कहा जाता है। तो औरंगज़ेब ने कई सारा जो है बताया जाता है कि उन्होंने कई सारा टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी किया था, वेदर दीज़ आर ट्रू और नॉट, बट दीज़ आर जनरली सेड, है ना? तो औरंगज़ेब वाज़ आल्सो द लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इन्होंने बेसिकली मुतासिब ये इंस्टीट्यूट किया था टू टू व्हाट टू इन्फोर्स इस्लामिक लॉ, राइट? तो इन्फोर्स इस्लामिक लॉ, आपको ये चीज याद रखना है, राइट? टू इन्फोर्स इस्लामिक लॉ को इन्फोर्स करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, गया था, है ना? एंड द सिस्टम एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड, द ये बेसिकली एक्सटेंड किया गया था ओडिशा में बाद में, है ना? पहले तो दिल्ली एरिया में वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, ओडिशा में भी एक्सटेंड किया गया था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको। आई होप द आइडिया हो रहा है आपको कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है ना? तो ओडिशा में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है।
तो देखो, हु फर्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 8 इज द हु फर्स्ट मूव अ रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरियाज, राइट। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जानना है आपको पहले तो, ये इंडियन जो है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे कवर किया जाएगा, है ना। एंड देखो ऑप्शन क्या है, मधुसूदन दास, गोपाल बंधु दास, है ना, हरे कृष्ण महाताब, कृष्ण महाताब, नील कांत दास, राइट। तो ये सब ऑप्शंस है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली मैंने आंसर भी डाल दिया, ठीक है। तो देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहले क्या जानना है, देखो जब इंडिया में ना एक इंडिया में फ्रीडम फाइट हो रहा था, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने कई सारा कमिटीज कमीशंस भेजा, एंड फाइनली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन में नया गवर्नमेंट बना, है ना, ब्रिटेन में लेबर जो है पार्टी का गवर्नमेंट बना, तो लेबर पार्टी ने बताया कि अब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट कर देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक मिशन भेजा इंडिया में, है ना, उसका नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, राइट। तो इसके तहत इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो है ये प्लान हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया सेंटर में, है ना। तो इसके तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना, है ना। जो पहले अभी जो पार्लियामेंट हुआ करता था ना, पार्लियामेंट बेसिकली काम करता था क्या, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करता था। अभी जो प्रेजेंट डे पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करता था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस, constituent assembly means the body which makes constitution, right। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे, राइट। वही बाद में पार्लियामेंट बना। तो ये जो है इसी में यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था। तो वहाँ पे जब डिबेट हो रहा था ना, तो वहाँ पे एक डिबेट प्रपोज किया गया था, डिबेट में बताया गया था कि ओडिया स्पीकिंग एरिया को ना यूनिफाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये डिबेट किसने प्रपोज किया था, ये नीलकंठ दास ने प्रपोज किया था। नीलकंठ दास, है ना, उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन ऑफ द ओडिशा, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स का नाम आता है। तो ये एक मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का उस टाइम में। तो ये चीज़ जानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 इज द right, Bhaumakara started an era in 736 C, right। What was the last known date, right। तो इसका लास्ट नोन डेट था क्या था। तो आपको यहाँ पे भौमाकारा क्या है ना, उससे को उसके बारे में जानना है ना। तो यहाँ पे 736 में उन्होंने जो है एक एरा स्टार्ट किया था, है ना। तो ये चीज़ भी जानना है आपको। तो भौमाकारा जो है ना, ये बेसिकली एक इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डेड, ये भौमाकारा बेसिकली है ना, ये क्या है, इंस्क्रिप्शंस है, भौमाकारा इंस्क्रिप्शंस है, राइट। दीज आर द इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड डेट्स इन देयर ओन एरा, राइट। उसी का जो है एरा में ये डेट रिकॉर्ड करता है। द लास्ट नोन बीइंग द 213 इंक्लूडिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ द रूल, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन में जो लास्ट डेट जो है रिकॉर्ड किया गया है वो 213 है। तो भौमाकारा इंस्क्रिप्शन में जो लास्ट डेट जो रिकॉर्ड किया गया है वो क्या है, 213, राइट। 213 आपको याद रखना है, ये है लास्ट ईयर दैट वाज रिकॉर्डेड इन द भौमाकारा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे भौमाकारा इंस्क्रिप्शंस क्या है ना, कहाँ पर बना था ये, है ना। तो वो सब चीज़ें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज कैपिटल शिफ्ट ऑफ द वंजाज ऑफ द खिंजाली मंडना, ठीक है। तो खिंजाली मंडला का जो कैपिटल है ना, शिफ्ट कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है वंजुवल्का, राइट, वंजुलबका। बी इज द विनीतपुरा, राइट। सी इज द यायती नगरा एंड डी इज द डी इज व्हाट, बैगराकोटा, राइट। सो बैगराकोटा। तो ये सब ऑप्शंस में आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, विनीतपुरा, राइट। सो वजनस बेसिकली इनिशियली रूल्ड कहाँ पे, धृतिपुरा में इन्होंने रूल करता था पहले। धृतिपुरा नाम का एक एरिया है उड़ीसा में, है ना। वो भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे है, जब बाद में हिस्ट्री पढ़ाएंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिकली उड़ीसा में एक एरिया हुआ करता था धृतिपुरा, तो वहाँ पे उन्होंने पहले रूल करते थे, है ना। लेटर बेसिकली क्या हुआ, वो शिफ्ट दैट देयर कैपिटल टू विनीतपुरा। तो त्रिपुरा से ब्रिंडीपुरा, डी से वी शिफ्ट हुआ, आप याद करो ये चीज, ठीक है। सो डी से वी शिफ्ट हुआ, त्रिपुरा से विनीतपुरा में शिफ्ट किया कैपिटल, राइट। तो आपको जानना है ये कैपिटल ऑफ वंजास था, राइट। वंजास ये ऐसे शिफ्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विथ रेफरेंस टू द महाशिवगुप्ता बलराजुना,
राइट, महाशिवगुप्ता बलराजुना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो महाशिवगुप्ता बलराजुना, स्टेटमेंट वन इज द ही वाज द पांडुवंशी किंग ऑफ साउथ कोसल, है ना, विद द कैपिटल एट सिरपुर, ठीक है। तो ये भी किंग से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे नोटिस करते जाना, मैं जैसे ही PYQs करा रहा हूँ ना, आप नोटिस करिएगा यहाँ पे किंग से रिलेटेड, उसका काम से रिलेटेड, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी फोकस किया जा रहा है। रिलीजियस जो जो पॉलिसीज है किंग्स का, डिफरेंट रूलर्स का पॉलिसीज है, उसमें भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है ना। ही एक्सटेंडेड द डोमिनियन बाय कैप्चरिंग द सुवर्णपुरा, राइट, मॉडर्न सोनपुर, ये मॉडर्न सोनपुर में एक सुवर्णपुरा है, सुवर्णपुरा का जो है डोमिनियन उन्होंने एक्सटेंड किया था बाय कैप्चरिंग दिस, है ना। एंड ही रूल्ड मोर देन 57 ईयर्स, ये स्टेटमेंट 3 है। तो इस स्टेटमेंट में हाउ मेनी, इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, इफ यू नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। यू कैन मेक द डिस्कशन ऑन द कमेंट सेक्शन एज वेल, राइट। तो आप अगर एस्पिरेंट्स हो, है ना, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कई सारा प्रोडक्टिव डिस्कशंस कर सकते हो, राइट, कि क्या क्या होगा। तो यहाँ पे भी कई सारा जो नॉलेज शेयरिंग है आजकल, कमेंट सेक्शन में भी कई सारा इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिलता है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इफ यू नो द आंसर, ठीक है, इसमें इसमें ऑप्शंस क्या क्या होगा, आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव, सभी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो जो महाशिवगुप्ता जो बलराजुना हुआ करते थे, ही वाज बेसिकली पांडुवंशी रूलर था, एक पावरफुल पांडुवंशी रूलर थे, है ना। ही वाज अ पांडुवंशी रूलर ऑफ साउथ कोसल, राइट। तो ये जो है ही वाज द पांडुवंशी किंग हुआ करता था साउथ कोसल का, यहाँ पे इसका कैपिटल सिरपुर में था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हिज कैपिटल वाज सिरपुर, है ना। ही एक्सपांडेड हिज किंगडम बाय कैप्चरिंग द नियर बाय रीजन्स, ठीक है। तो उन्होंने कई सारा जो है रीजन का, नियर बाय रीजन से उसको जो कैप्चर किया था, जैसे कि सुवर्णपुरा, उसमें एक हुआ करता था सुवर्णपुरा, जो मॉडर्न डे सोनपुर में पड़ता है, उसको भी उन्होंने कैप्चर किया था। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हुआ, है ना, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टेटमेंट 3, उन्होंने 57 साल, 57 ईयर से भी ज़्यादा रूल किया था, है ना। तो इसके इसीलिए ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर होता था कोसल डायनेस्टी का, साउथ कोसल डायनेस्टी का, ठीक है। तो महाशिवगुप्ता बलार्जुना, उसके बारे में जानना है आपको, राइट। तो ये बेसिकली तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ द सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिशा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो है सेपरेट प्रोविंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उड़ीसा जो है सेपरेट प्रोविंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड स्टेटमेंट 1 इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओडिशा ऑर्डर 1936, है ना, received a royal assent on 3rd of March 1936 and Odisha became a new province in 1st of April 1936। तो यहाँ पे देखिएगा आप, डेट भी इंपॉर्टेंट है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये मॉडर्न हिस्ट्री से, एक तो क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप, मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है, राइट, मॉडर्न हिस्ट्री से है। एंड यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछा जा रहा है, राइट, डेट भी पूछा जा रहा है। एंड सेकंड ऑप्शन दिस, सर जॉन ऑस्टिन हबैक, राइट, हुबैक, सर जॉन ऑस्टिन हुबैक वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा का फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे और एक इनपुट मिला आपको कि फर्स्ट क्या क्या है, वो भी आपको याद रखना है। ओडिशा का फर्स्ट गवर्नर कौन है, फर्स्ट CM कौन है, राइट। एंड स्टेटमेंट 3 इज सर कोटनी टेरेल, द चीफ जस्टिस ऑफ बिहार एंड ओडिशा हाई कोर्ट, एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द गवर्नर, राइट। तो यहाँ पे गवर्नर को किसने ओथ दिलाया था उस टाइम में, तो ये भी फैक्चुअल पॉइंट्स भी पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना, फैक्चुअल, राइट। तो चीजें भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, जीके का फैक्ट, बेसिक फैक्ट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट द इनाग्रल फंक्शन वाज हेल्ड एट राविंसा कॉलेज हॉल एट कटक। तो देखो अगेन फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ पे, कहाँ पे हुआ था वो भी पूछा जा रहा है, वेयर, राइट, वेयर, क्या कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जा रहा है। तो ऐसे आपको देखो एक क्वेश्चन में कितना इनपुट मिल रहा है, एक क्वेश्चन में कई सारा यहाँ पे चीजें है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, ये यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। यूपीएससी ने रिसेंटली 2022 21-22 के टाइम में ना ये पैटर्न डाला था, ताकि यूपीएससी में जो एलिमिनेशन का जो है ना अप्रोच, काफी एस्पिरेंट्स ना तुक्का मारते थे पहले, कि वो करते तुक्का मारते थे कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, उनका गेस वर्क काफी काम कर रहा था। लेकिन आजकल ये ओनली 1 वाला, ओनली 2 वाला जो ऑप्शन है हाउ मेनी वाला, उसमें गेस वर्क काफी कम काम करता है, ठीक है। तो उड़ीसा ने भी ये अप्रोच अडॉप्ट किया है कि वी शुड बी वेरी प्राउड दैट ओडिशा इज डूइंग दीज रिफॉर्म्स, है ना, यूपीएससी लेवल का जो रिफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए OAS इज वन ऑफ द एलिट सर्विस इन इंडिया, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप मानते हो कि नहीं,
है ना? उड़ीसा को मानते हो आप कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना? ये ओडिशा का है। मैं मानता हूँ क्योंकि ओडिशा में बहुत पहले ही यूपीएससी पैटर्न अडॉप्ट किया था। ओडिशा का डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लेके ओडिशा का गवर्नेंस सभी जो है नेशनल लेवल से जो है कंपैरेबल है, राइट? तो फॉर दैट रीज़न आई बिलीव दैट ओडिशा इज़ डूइंग क्वाइट वेल इन दिस फील्ड, राइट? आप इस चीज़ को विश्वास करते क्यों नहीं हो, राइट? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, राइट? यू आर वेदर प्राउड ऑफ ओडिशा और नॉट, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। नाउ आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दो, राइट? क्विकली कमेंट कर दो इसका आंसर क्या है, राइट? इसका आंसर है ऑल ऑफ द फोर, डी, राइट? ऑल ऑफ द फोर इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ओडिशा ऑर्डर 1936 इशू किया था, ठीक है? तो ये बेसिकली कब इशू किया था? ये इशू किया था 3 मार्च 1936 में जो है ये 1 अप्रैल 1936 में बेसिकली ओडिशा प्रोविंस बना। एंड जो है ये जो ओडिशा पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओडिशा ऑर्डर 1936 ना, ये बेसिकली जो है ये 1 अप्रैल जो है ये इसका इसका एसेंट मिला एंड ये ओडिशा नया प्रोविंस बना। तो देखो ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर बेसिकली रॉयल एसेंट इसको 3 मार्च 1936 में मिला था, ठीक है? तो ओडिशा एक सेपरेट प्रोविंस कब बना? 1 अप्रैल 1936। आपको याद रखना ये चीज़। एंड अगर जो सेकंड स्टेट में का बात करेंगे तो सर जॉन ऑस्टिन जो हुबक है, ये फर्स्ट गवर्नर थे ओडिशा के। एंड सर कोटनी टेरेल थे जो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हुआ करता था उस टाइम में, बिहार एंड ओडिशा हाई कोर्ट है ना, दोनों का एक इंटीग्रेटेड हाई कोर्ट हुआ करता था उस टाइम में। तो उन्होंने ओथ जो है, अभी भी गवर्नर को ओथ दिया जाता है। कौन देता है ओथ? ओथ देता है गवर्नर, जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर को ओथ देता है ना? गवर्नर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना? तो ऐसे करके ओथ देता है। तो उस टाइम में जो है ओथ इनको कौन दिलाया था? सर कोटने टेरेल, राइट? आई एम रिपीटिंग द नेम, आपको याद रखना है। जो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार एंड ओडिशा हाई कोर्ट जो इंटीग्रेटेड हाई कोर्ट था, वहाँ का चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे उनको ओथ दिलाया था यहाँ पे, राइट? एंड द इनाग्रल फंक्शन वाज हेल्ड एट राविंसा कॉलेज। तो ओडिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेज है, राविंसा कॉलेज है कटक में, राइट? तो इनफैक्ट यहाँ पे ना सुभाष चंद्र बोस, आपने फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस, है ना, नेताजी, बंगाल में काफ़ी रिस्पेक्टेड फिगर है, राइट? इन इंडिया में पूरा रिस्पेक्टेड फिगर है, उनका डेथ है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो सुभाष चंद्र बोस भी ये कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है? तो आपको जानना है। एंड ये आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी विजिटेड ओडिशा। देखो सभी चीज़ें में मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब चीज़ें जो है ओडिशा से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ओडिशा आपको जब भी, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब नेशनल लेवल जो भी पढ़ोगे आप, कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ओडिशा से को ध्यान में रख के पढ़िएगा, राइट? नाउ कब विजिट किया था? ऑप्शन ए इज मार्च 1921, अगस्त 1925, दिसंबर 1927, सितंबर 1930। विच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट, ठीक है? तो नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा गया अगेन, राइट? यहाँ पे देखो कंफ्यूजन कितना डाल रहा है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? तो देखो गांधी ने ना ओडिशा में कई बार विजिट किया था, गांधी विजिटेड ओडिशा मल्टीपल टाइम्स, राइट? तो गांधी ने विजिट किया था, नहीं किया था, वो है ऑप्शन डी, विच इज सितंबर 1930 में विजिट नहीं किया था। मार्च 1921 में भी उन्होंने विजिट किया था, अगस्त 1925 में उन्होंने विजिट किया था, दिसंबर 1927 में भी उन्होंने विजिट किया था, राइट? तो आपको जानना है कितना ओडिशा कितना इंपॉर्टेंट था गांधी के लिए, राइट? तो गांधी मल्टीपल टाइम्स ओडिशा में विजिट किया था, ठीक है? तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, राइट? तो रिमेंबर डेट्स, बाद में क्यों नो विजिट किए थे, कैसे विजिट किए थे, वो भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज कपिलेंद्र देवा subdued many feudatory chiefs who rebelled against him, right? Which of the following is not being no did not belong to this category, ठीक है? तो कपिलेंद्र देव जो थे, है ना, उन्होंने कई सारा फ्यूडेटरी चीफ जो है उसके टाइम में, जो उसके टाइम में ना उन्होंने कई सारा जो फ्यूडेटरी चीफ है जो रिबेल किया था उसके अगेंस्ट में, है ना, उसको सबड्यू किया था। सबड्यू करना मतलब उनको सप्रेस किया था, उनका जो है आवाज़ बंद करने का कोशिश किया था उन्होंने, है ना? तो बेसिकली इसमें से कौन जो कैटेगरी, इस कैटेगरी में नहीं थे, किसका वॉइस उन्होंने सबड्यू नहीं कर पाए थे? ऑप्शन इज गंगाज ऑफ खेमुंडी, गंगाज ऑफ खेमुंडी, बी इज चौहान ऑफ पटना। आप मैं जैसे ही ऑप्शन पढ़ता जाऊँगा, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, राइट? कमेंट सेक्शन में करते जाइए सो दैट ये सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव हो सके, राइट? एंड जो ऑप्शन सी ये क्या है? मत्स्य ऑफ ओडाडी, राइट? सो मत्स्य ऑफ ओडाडी एंड शिला वंशीज ऑफ
नंदनपुरा, राइट, शिला वंशीज ऑफ नंदनपुरा। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको और एक पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ। जब भी आप कोई भी पीवाईक्यूज करोगे, है ना, जब भी आप कोई भी पीवाईक्यू करोगे, तो वो पीवाईक्यू में आप जो ऑप्शंस मिलता है ना, स्टेटमेंट्स, वो सब ऑप्शंस, उस पर थोड़ा रिसर्च करिएगा, राइट, ये काम में आता है। देखो आप जैसे कि गंगा ऑफ खेमुंडी यहाँ पे मेंशन है, नेक्स्ट ईयर यहाँ से गंगा ऑफ खेमुंडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चौहान ऑफ पटना यहाँ पे बात किया है, तो नेक्स्ट टाइम चौहान ऑफ पटना से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो पीवाईक्यूज एनालिसिस के टाइम में आप जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, जो वर्ड्स मेंशन किया उससे में थोड़ा रिसर्च R&D कर लीजिएगा, आपका नोट्स में वो ऐड कर लीजिएगा, राइट। तो आपका जो है, आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। जो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, राइट। सो शीला वंशीज ऑफ नंदनपुरा, डी इज द आंसर, राइट, ऑप्शन डी इज द आंसर, है ना। तो कपिलेंद्र देव जो हुआ करते थे, ये गजापति डायनेस्टी का हुआ करते थे, राइट। ही वाज फ्रॉम व्हाट, ही वाज फ्रॉम गजापति डायनेस्टी, राइट। सो गजापति डायनेस्टी से हुआ करते थे, राइट। एंड बेसिकली उन्होंने क्या सबड्यू किया था कई सारा रेबेलियंस, जैसे कि गंगा, है ना, गंगा को उन्होंने खेमुंडी, उनका रेबेलियन भी क्रश किया था। चौहान जो थे पटना के थे, है ना, उनका रेबेलियन भी उन्होंने क्रश किया था। मत्स्यस जो था, जो ओडाडी में था, रूल करते थे, उनका भी जो है वॉइस उन्होंने सबड्यू किया था, है ना। तो शीला वंशी ऑफ नंदनपुरा जो थे, उनका जो है वॉइस उन्होंने सबड्यू नहीं कर पाया था, नहीं किया था, राइट। तो आपको जानना है डी इज नॉट द करेक्ट आंसर है ऑप्शन, राइट। सो इसीलिए डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये देखो, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे टाइप भी याद रख लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। एक कॉलम में है नो विचित्र नंददास, विचित्र नंददास, दूसरा कॉलम है कुजीबारा पत्रिका, ठीक है, कुजीबारा पत्रिका, उत्कल दीपिका, गौरी शंकर रे, संबलपुर हितैषानी हितैषिनी, राइट, निलंबनी विद्यारत्न, दैनिका आशा, दैनिका आशा, शशि भूषण रथ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है ना, न्यूज़पेपर एंड इसका एडिटर्स नहीं तो राइटर्स, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कि ये इसका एडिटर कौन थे और इसका फाउंडर कौन थे, ये जो है न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड आपको जो भी मैचिंग चीज़ें इसको मैच करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपका आंसर पता है कि नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में करो, विचित्र नंद दास किससे रिलेटेड थे, राइट। तो देखो यहाँ पे करेक्ट, जो यहाँ पे भी क्वेश्चन आप याद रखो, यहाँ पे नॉट करेक्टली, राइट, ये पहले ही आप अंडरलाइन करके रखो कि ये नॉट करेक्टली पूछा है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, विचित्र नंद जो दास थे, ठीक, राइट। सो विचित्र नंद दास, राइट, बेसिकली दिस इज नॉट करेक्ट। विजेंद्र नंदा दास जो ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, दिस इज नॉट बेसिकली, सी वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कुजीबारा पत्रिका, राइट। सो कुजीबारा पत्रिका से वो रिलेटेड नहीं थे, है ना, ही वाज नॉट रिलेटेड टू कुजीबारा पत्रिका। एंड जो उत्कल दीपिका है ना, ये एडिट करते थे उत्कल दीपिका गौरी शंकर रे, राइट। सो गौरी शंकर रे वाज बेसिकली वाज एडिटर, राइट, एडिटर ऑफ उत्कल दीपिका, है ना। संबलपुर हितैषणी, संबलपुर हितैषणी क्या था, संबलपुर हितैषणी बेसिकली was edited by the निलंबनी विद्यारत्न, राइट। सो निलंबनी विद्यारत्न जो थे, सी वाज आल्सो द एडिटर, है ना। एंड दैनिक आज बेसिकली शशि भूषण रथ इन्होंने एडिट किया था, राइट। तो ये जो तीन है ये करेक्ट है, लेकिन जो है ऑप्शन ए इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड जानना है ना, न्यूज़पेपर किसने एडिट किया था, कब एडिट किया था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में वेयर डू वी कम अक्रॉस, है ना, द माधवपुरा महावीरा, राइट। तो ये जो माधवपुरा महावीरा है ना, इससे रिलेटेड थिंग्स कहाँ पे मिलता है आपको, रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी एंड पुष्पगिरी, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कब पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि वेयर डू वी कम अक्रॉस द माधवपुरा महाविहारा, राइट। सो महावीरा विहारा क्या है ना, महावीरा विहारा वो होता है जहाँ पे रेस्टिंग प्लेस होता है बुद्धिस्ट का, है ना, विहार जहाँ पे मेडिटेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, पुष्पागिरी। पुष्पागिरी में बेसिकली वी कम अक्रॉस द दिस थिंग, राइट। तो बेसिकली पुष्पागिरी क्या था, एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करता था उड़ीसा में, राइट। सो व्हाट इज दिस पुष्पागिरी, दिस वाज द बुद्धिस्ट, राइट, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, है ना। आपने नालंदा, तक्षशिला ये सब सुने होंगे,
राइट, नालंदा तक्षशिला, तो उसी टाइप का एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था उड़ीसा में, उसका नाम था ये पुष्पगिरी, राइट, यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स था ये। एंड दिस वाज कंप्राइजिंग द साइट्स ललितगिरी, रत्नगिरी, राइट, ललितगिरी, रत्नगिरी एंड उदयगिरी, राइट। तो ये सब जो है ना पुष्पगिरी के अंदर ही ये सब चीजें था, ललितगिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, है ना। एंड बेसिकली माधवपुरा महावीर बेसिकली इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है, राइट। तो पुष्पगिरी के अंदर ही महावीरा जो है, माधवपुरा महावीरा कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे और एक ट्रेंड आपको पता चल गया, यहाँ पे बुद्धिस्ट साइड से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना। बुद्धिस्ट साइट्स, अगर रिसेंटली कोई उड़ीसा में बुद्धिस्ट साइट्स एक्सकेवेट हुआ है, बुद्धिस्ट जो है साइड से रिलेटेड थिंग्स है ना, तो उससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 17। ओडिशा एक्सपीरियंसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोएपन्स क्लासिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे देखो इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में आपने जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, है ना, इंडिया का क्लाइमेट वो सब चीज़ें, तो उसमें ये कोएपन क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा। तो इंडिया का जो क्लाइमेटिक डिवीजन है ना, उसमें क्या क्या, कौन सी एरिया में मानसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, कौन सी एरिया में डेसिडियस टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, कौन सी एरिया में जो है मोन्टेन क्लाइमेट पाया जाता है, तो वो सब जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कोएपन क्लासिफिकेशन देता है, राइट। कोएपन क्लासिफिकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का मैप में पढ़ाएंगे हम। तो देखो कोएपन जो क्लासिफिकेशन है ना, कोएपन क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग उड़ीसा कौन से में पड़ता है, तो उसमें भी देखो उड़ीसा स्पेसिफिक पूछा, ज्योग्राफी में भी उड़ीसा स्पेसिफिक, तो सभी चीज़ में आपको उड़ीसा डाल देना चाहिए जब भी आप नेशनल लेवल का जो भी चीज़ पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल सावना, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन एंड सब ट्रॉपिकल स्टेपी। सो अगर आपको आंसर पता है तो क्विकली कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, राइट। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। So answer is what? आंसर इज ए सब ट्रॉपिकल सावाना, राइट, ट्रॉपिकल सावाना। तो उड़ीसा का जो क्लाइमेट है एज पर कोईपन क्लासिफिकेशन दैट इज द ट्रॉपिकल सावाना, है ना। तो ट्रॉपिकल सावाना बेसिकली ना कोईपन ने कई सारा नाम दिया है, ASW, तो एस टाइप का जो है नाम दिया है। तो उसमें से जो उड़ीसा जो ट्रॉपिकल सावाना है, ट्रॉपिकल सावाना का जो टाइप है, क्या टाइप है, AW टाइप, राइट। तो आपको ये सिंबल्स भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में सिंबल्स भी पूछता है कभी कभार, राइट। तो उड़ीसा का जो टाइप है ट्रॉपिकल सावाना AW टाइप है ना। यहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होता है, सीजनल रेनफॉल, है ना। यहाँ पे क्या क्या दो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई, हाई टेम्परेचर रहता है, राइट, हाई टेम्परेचर। एंड दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा टाइप क्या है, हाई टेम्परेचर होता है एक। सेकेंड वन इज द राइट रेनफॉल होता है यहाँ पे, सीजनल रेनफॉल होता है, नॉट ऑल द टाइम, सीजनल रेनफॉल विच इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, रेनफॉल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, द मानसून, राइट। मानसून से इन्फ्लुएंस होता है यहाँ का क्लाइमेट, ठीक है, द मानसून इन्फ्लुएंस क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो उड़ीसा का बेसिकली मानसून इन्फ्लुएंस सीजनल रेनफॉल होता है, हाई टेम्परेचर होता है, AW टाइप क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल सवाना है, राइट। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नो एंड बीचेस साइट एंड डिस्ट्रिक्ट आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे भी नॉट करेक्ट पूछा है, राइट, नॉट करेक्ट, सब जगह नॉट करेक्ट डाल दे रहे। तो गांधर, गांधर मर्दन हिल रेंज, ये बारगर एंड बालागिर में लोकेटेड है, वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। बी इज मदरासू गॉर्ज, ये कालाहांडी में लोकेटेड है। सतकोसिया गॉर्ज अंगुल में लोकेटेड है। महेंद्रगिरी गिरी जो हिल रेंज है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, गजापति में लोकेटेड है। तो आपको याद पेर मैच करना है कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, कहाँ पे लोकेटेड है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर, है ना, राइट। तो कमेंट करो बायोडाइवर्सिटी। देखो यहाँ से आपको जानना है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है ना, BHS क्या है। एंड BHS में भी रिसेंटली अगर डिक्लेयर किया है तो उसमें कौन कौन सी साइट उड़ीसा में आ रहा है ना। रिसेंटली पद्मा अवार्ड डिक्लेयर हुआ, तो पद्मा अवार्ड्स में उड़ीसा में किस किस को पद्मा अवार्ड्स मिला। तो आपको जानना है कि उड़ीसा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करंट हो रहा है, करंट में भी चीज़ें, है ना, नेशनल थिंग में भी उड़ीसा से रिलेटेड क्या है। तो सब चीज़ में उड़ीसा है यहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो इसका आंसर क्या है, राइट। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, राइट। सतकोसिया गॉर्ज बेसिकली अंगुल में नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट, नॉट करेक्ट, राइट। तो बाकी सब चीजें बेसिकली ये करेक्ट है। तो जो सतकोसिया रेंज है ना, सतकोसिया जो गॉर्ज है, सतकोसिया गॉर्ज बेसिकली एक्सटेंड्स अक्रॉस द अंगुल एंड जो है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सतकोसिया गर्ज गर्ज है,
सतकोशिया गॉर्ज है ना। गॉर्ज आपको पता होगा गॉर्ज क्या है, जब रिवर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है स्पीड में है ना, तो वहाँ पे गॉर्ज बनाता है ये ना, वो भी हम ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। तो सतकोशिया गर्ज बेसिकली कहाँ से पास होता है, ये अंगुल एंड नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वहाँ तक एक्सटेंड होता है, राइट। लेकिन जो बेसिकली है ना, अंगुल मेक्स द पेयर करेक्ट, तो यहाँ पे इसीलिए राइट, तो दैट इज द थिंग दैट यू शुड बी नोइंग। तो ये जो सतकोशिया गर्ज है बेसिकली अंगुल से नहीं, राइट, अंगुल से नहीं बल्कि कई सारा डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। ये अंगुल है एक, तो अंगुल से तो गुजरता है, दिस इज करेक्ट, बट अंगुल छोड़ के सतकोशिया गर्ज किसके साथ, नया, राइट, नयागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो यहाँ से भी ये जो है सतकोशिया गॉर्ज पास होता है, राइट। सो सतकोशिया गॉर्ज क्रॉस नॉट ओनली अंगूर बट नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो बाकी सब चीज़ ठीक है, राइट। गंधामर्दन जो हिल रेंज है ये बारगढ़ एंड बालांगीर जो है यहाँ पे लोकेटेड है। जो मंदरासु गॉर्ज है ये कालाहांडी में जो है एक्सटेंड होता है, एंड महेंद्रगिरी हिल रेंज है जो गजापति में एक्सटेंड होता है, राइट। तो ये सब आंसर ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो है सी इनकरेक्ट है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे ना अंगुल करेक्ट है लेकिन खाली अंगुल इनकरेक्ट है ना, अंगुल छोड़ के, और जो है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से आता है, ठीक है। तो देखो और एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हम इनसाइट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं सेशन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखेंगे तो हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लासेस का जो चेयरपर्सन है ये कौन थे, ये उस टाइम के बहुत पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जस्टिस रघुनाथ बिस्वाल, जस्टिस बिमल प्रसाद दास, जस्टिस विजय कृष्ण पटेल, है ना, कृष्ण पटेल, जस्टिस जतिंद्र प्रसाद दास। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था। तो आपको यहाँ पे इंसाइट मिल सकता है कि करंटली जो है स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में उड़ीसा में जो है उसको याद रखना है आपको, चेयरमैन कौन है करंटली जो है स्टेट में, जो है जो माइनॉरिटीज़ का जो कमीशन है उसका चेयरपर्सन कौन है करंटली स्टेट में। ट्राइबल जो है, ट्राइबल से रिलेटेड बॉडी जो भी है स्टेट में है ना, उसका कमीशन का चेयरपर्सन कौन है, ट्राइबल मिनिस्टर कौन है। तो ये सब जो बेसिक फैक्ट है ना उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट। तो ये यहाँ से बेसिक आइडिया आपको दिला देता है। तो जस्टिस बिमल प्रसाद दास बेसिकली है ना सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ नो ओडिशा कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जस्टिस बिमल प्रसाद दास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ना। बिमल प्रसाद दास हैज़ ऑलरेडी सर्व्ड एज द स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा यहाँ से कि कैसे PYQs पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, किस कैसे OPC आपको है ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट ट्रैप में डाल दे रहा है ना। नॉट ओनली पूछ के, ओनली हाउ मेनी पूछ के, ओनली वन ओनली टू टाइप पूछ के, है ना। एक ही जो है क्वेश्चन में पाँच छः चार पांच चार पांच स्टेटमेंट डाल के, है ना, एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट डाला हुआ था, वहाँ पे कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, फैक्ट डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ना आपको सभी चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा था उड़ीसा PEC का वेटेज कम है, लेकिन डिस्पाइट दैट ओडिशा PEC में स्टेट का जो डिस्पाइट बीइंग द लेस वेटेज, यू डू नॉट हैव टू इग्नोर, यू शुड नॉट इग्नोर द स्टेट रिलेटेड फैक्ट। तो इसीलिए हम अराउंड 30 to 35 आवर का एक सेशन करेंगे OPC ओडिशा स्पेसिफिक। 30-35 घंटे आप ना इसको पूरा अगर वीडियो देखोगे तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप शायद 2-3 दिन में कवर कर पाओगे। तो उसमें पूरा हम ओडिशा से रिलेटेड सब चीज़ कवर कर देंगे, ठीक है। तो वो बैच इसी क्रैश कोर्स पे होने वाला है वो चीज़, है ना। तो PYQs में का भी वो सब चीज़ यहाँ पे इस बैच में हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे इनसाइड से आपको क्या क्या मिला, इस साइड से आपको मिला कि जो है मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे फैक्चुअल भी आता है ना, एक तो फैक्चुअल आ रहा है, एक तो कॉन्सेप्चुअल भी आ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, है ना, कि क्या है इसका मतलब, क्या है ये, क्या बताने का कोशिश कर रहा है। एंड PYQs में कुछ आपको रिपीट पैटर्न भी देखने को मिला, कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है ना PYQs, इसीलिए आपको अच्छे से करके जाना है। तो फाइनल नोट यहाँ पे क्या होगा, डेली आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, डेली पढ़िए, है ना, रिवाइज करिए, वो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स में फोकस करिए रादर देन काफ़ी एडवांस चीज़ें पढ़ने से। इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक्स जो है, कॉन्सेप्ट फैक्ट आपको याद रखे जाना।
PYQs मल्टीपल टाइम्स आपको सॉल्व करके जाना है ना, वो सेशंस मैं करा दूंगा। बिल्ड स्पीड ग्रेजुअली, आप स्पीड ग्रेजुअली स्पीड करो स्पेशली सी सैट में। कीप सी सैट प्रिपरेशन कंसिस्टेंट अलॉन्ग साइड जी सैट, ठीक है। जीएस के अलॉन्ग विद आप सी सैट का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करो, राइट। तो हमने ना आज, मैं देखो आज का सेशन पूरा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने आज ना प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर, जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का हमने स्ट्रक्चर बता दिया। मैंने पेपर 1 का डिटेल्स में आपको बता दिया कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे उड़ीसा जीके का वेटेज बता दिया, कैसे ये जो है अक्रॉस द ईयर्स जो है, जो उड़ीसा में ना क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेंड चल रहा है ना, क्या किस एरिया में आपको फोकस करना है, ठीक है। उड़ीसा में भी के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको इसमें फोकस करना है। सोर्सेज मैंने बता दिया है ना, सोर्सेज को कैसे पढ़ना है, बुक लिस्ट मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। सभी चीज़ें का मैंने बुक लिस्ट बता दिया। कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये चीज़ इज नॉट they cannot be ignored at any cost, right? So you remember these things, these are the main core areas, ठीक है। तो किसी भी दौर में आपको इसको जो है रिमूव नहीं करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ओपीएससी ओएस प्रीलिम्स सी सैट से रिलेटेड हमने बताया कि सी सैट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्वालिफाइंग होता है यहाँ पे, है ना। कैसे फोकस करना है, क्या क्या टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, बेसिक लेवल क्लास 10 से कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ going into other things, right, going into the important strategy मैंने बता दिया है ना, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करना है, कैसे स्ट्रैटेजी करना है, की प्रिपरेशन अप्रोच क्या क्या होगा, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करता है, स्कोरिंग स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद हमने डिटेल्स में पीवाईक्यू डिस्कस किया, पीवाईक्यू से आपको इनसाइट मिल गया, राइट। ऑल दीज थिंग्स वी कवर्ड टुडे, राइट। आई होप दिस सेशन was helpful to you. I am pretty sure that this session is going to be very helpful. This is a new and novel initiative by परचम क्लासेस, है ना। तो आपको ना इस सेशन में, ये सेशन आप काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, तो आप ज़रूर उड़ीसा पीएससी का जो प्रीलिम्स का जो 2026 का ये क्रैश कोर्स आप हमारे जो है इसको आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको ना ये दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर नो ओपीएससी प्रिपरेशन। यहाँ पे अगेन मैं बता देता हूँ, आपको 200+ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच आपको मिलेगा। यहाँ पे 70 डेज में कवर किया जाएगा, नोट्स, पीवाईक्यूज, टेस्ट, सब चीज़ मिलेगा, है ना। ये सब सब्जेक्ट्स पूरा जो भी है प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। इंडिया का जो हमारा है टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे एसोसिएटेड है ना। तो वो आपका जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक ब्रेक डाउन करके आपको जो है, आपको जो जो सॉल्व्ड जो है चीज़ें आप प्रोवाइड किया जाएगा। सब चीज़ें आपको सिंप्लीफाइड वे में प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स से लेके, पीवाईक्यूज लेके, टेस्ट से लेके, वीडियोस लेके, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको डिलीवर किया जाएगा। स्टार्ट मार्च है 5th ऑफ मार्च, 3rd जून है। लेकिन आपको ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि आप अगर ये 21st ऑफ मार्च तक अगर ये ऑफर अवेल करते हो, कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको 50% यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ह्यूज 50% डिस्काउंट, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ऑल इन वन स्टेट पीसीएस, है ना। तो अगर आप उड़ीसा में से हो, है ना, उड़ीसा से हो, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज, आप प्रिपेयर कर रहे हो आंध्रा पीसीएस से रिलेटेड, आप प्रिपेयर कर रहे हो झारखंड से, हो सकता है आप छत्तीसगढ़ का पीसीएस भी दे रहे हो, अब बिहार का भी दे सकते हो सकता है आप दिल्ली में रह रहे हो, है ना, वहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से दे रहे हो, है ना। तो आपके लिए ये ऑल इन वन स्टेट पीसीएस बैच और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला ये सभी चीज़ें, ये सब जो स्टेट है, झारखंड का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये जो है स्पेशल जो स्टेट्स है, इन स्टेट्स का सभी चीज़ का जो है ना, आपको स्टेट स्पेसिफिक जो है जो चीज़ें कवर किया जाएगा यहाँ पे। नेशनल जीके, नेशनल जो है से लेके स्टेट का जो है सब चीज़ ऑल इन वन प्रोग्राम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, परचम क्लासेस ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे 1 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप एक बार खरीद लो पूरा लाइफ टाइम, क्योंकि ना पीएससी आपको पता ही है
सिविल सर्विसेज कभी एक साल में रेयरली एक साल में जो है सिलेक्शन नहीं होता, जनरली ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल लगता है ना, 3 इयर्स मान के चलो, 3 इयर्स। तो इसीलिए ना आप क्या बाकी सारा कोचिंग सेंटर्स क्या करता है कि जो है 1 साल के लिए कोर्स देता है, उन लोग क्या करता है 1 ईयर के लिए कोर्स बेचता है, उसके बाद उसका वैलिडिटी खत्म, उसके बाद और आपको फिर से उसको खरीदना पड़ेगा कोर्स, है ना, सेकंड टाइम फिर से खरीदना पड़ेगा। तो उसके चलते जो है उसका आपका कॉस्ट ओवररन होता है, आपको बार बार खरीदना पड़ता है कोर्स, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड हमारा परचम क्लासेस में ये स्टार्ट किया गया है। आपको इसमें एनरोल करना चाहिए, है ना। यहाँ पे ऋचा मैम से लेके हमारा टॉप एजुकेटर्स इन्वॉल्व है, सब चीज़ें, ये सब जो फैसिलिटीज़ आपको अवेल किया जाएगा, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्पेशल एड ऑन्स मिलेगा, यूट्यूब्स का सेशंस मिलेगा, है ना, जूम सेशंस मिलेगा, आपको लाइव सेशंस मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे परचम क्लासेस का नंबर में, सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है आपको, है ना। एंड ऑल इन वन स्टेट पीसीएस का वन लाइनर ई बुक, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना, वन स्टॉप सोल्यूशन। आप ये बुक पढ़ने के बाद आपको रियली जीके के लिए बाकी कोई बुक रेफर करने का जरूरत है, राइट। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक ब्रेकडाउन है, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन है सभी स्टेट पीसीस के लिए। आप अगर एसएससी भी पढ़ रहे हो, आप बैंकिंग के लिए भी पढ़ रहे हो, अगर आप स्टेट पीसीस के लिए पढ़ रहे हो, है ना, डब्ल्यूबीसीएस के लिए पढ़ रहे हो, ओपीसी के लिए पढ़ रहे हो, है ना, नेशनल लेवल के कोई भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, नाबार्ड के लिए पढ़ रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट होगा। 16,000 प्लस वन लाइनर्स है यहाँ पे। इसके ये आप हमारा वेबसाइट से, नहीं तो ये नंबर में डायल करके आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो दीज वर द थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे, राइट। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू, राइट। वी विल be conducting more sessions on YouTube regarding the OPSC examination in the coming days, right? So happy learning, all the best for your the OPSC exams, prelims exam. Keep preparing for the exam, right? If you have any doubts and queries, I'm again telling you, you can comment in the comment section, or you can reach out to us through the management. So having said that, I'm concluding this session. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Thank you so much. Jai Hind.